शतरंज از قلم آیت خان پارٹ نمبر 1۔ دوربین کے ذریعے دو آنکھیں سامنے کھڑی BMW سے نکلتے اس 35 سالہ شخص پر مرکوز تھیں۔ اذلان سکندر سیکرٹ ایجنسی کے لیے کام کرنے والا ایک ایجنٹ تھا۔ وہ اور اس کی ٹیم پچھلے 2 ماہ سے ایک سمگلر جاوید شاہ پر نظر رکھے ہوئے تھے، اور آج وہ دن تھا جب اسے اپنے ہاتھوں میں لینے کی اجازت مل گئی تھی۔ جاوید شاہ اپنے قدم آگے بڑھا رہا تھا۔ اذلان سکندر اپنے ایک ساتھی کو اشارہ کیا۔ اس کی ٹیم ایک فرد نے 5 سے الٹی گنتی گننا شروع کر دی۔ 5۔ اذلان سکندر نے اپنی دوربین نیچے کر کے اپنے گن اوپر کی۔ 4۔ اذلان نے گن کی دوربین سے جاوید کا نشانہ باندھا جو کہ موبائل پہ کسی کو میسج کرنے پہ مصروف تھا۔ 3۔ اذلان نے اپنا نشانہ جاوید کے ماتھے سے اس کی دائیں ٹانگ پہ منتقل کیا کیونکہ وہ اسے زندہ پکڑنا چاہتے تھے۔ 2۔ اذلان نے ایک لمبی سانس لی اور انگلی ٹریگر پہ رکھ دی۔ 5۔ وہ گولی چلانے والا ہی تھا جب ایک دم ایک لڑکی جاوید شاہ سے آ کے ٹکرائی۔ اذلان نے ضبط سے اپنے دانت بھینچے۔ اوہ سوری، ویٹ، میں تم سے سوری کیوں کر رہی ہوں؟ تمہیں دیکھ کے چلنا چاہیے تھا۔ حد ہے ویسے، سڑک پر چلنے کی تمیز ہی نہیں۔ اور ٹشن دیکھو ان جناب کے۔ جاوید اپنے گوگلز اتار کر اس لڑکی کو دیکھا جو شیر کے منہ میں ہاتھ مار رہی تھی اور اس بات سے بے خبر تھی۔ اب ایسے کیا گھورے ہو؟ شرم نام کی کوئی چیز تم میں ہے ہی نہیں۔ ہٹو راستے سے، جاہل کہیں گا۔ وہ غصے میں بولتی ہوئی آگے کو چل دی، جبکہ پیچھے جاوید شاہ کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ اس وقت ایک کمرے میں موجود تھے۔ ٹیبل کے ارد گرد بیٹھے وہ سب اذلان کو دیکھ رہے تھے، اور سامنے والی کرسی پہ اذلان سکندر اپنی گردن کو پیچھے گرائے آنکھیں بند کیے کسی سوچ میں گم تھا۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟ ایجنٹ 21 نے سوال داغا۔ ہمیں پھر سے پلاننگ کرنا ہوگی، اس لڑکی کی وجہ سے سارا کام خراب ہو گیا، ایجنٹ 32 نے جواب دیا، جبکہ حماد کی نظریں اذلان پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ حماد اور اذلان کافی گہرے دوست تھے، مگر یہ بات ان دونوں کے علاوہ کسی کو نہ پتا تھی۔ تم کیا کہتے ہو اذلان؟ حماد نے اسے سوال کیا۔ اذلان نے اپنی آنکھیں کھولی اور وہاں موجود سب لوگوں پر ایک نگاہ ڈالی۔ اب ہم اس کے گھر پر حملہ کریں گے۔ اس کی یہ بات سنتے ہی سب نے اس کی طرف عجیب نظروں سے دیکھا، جبکہ اذلان کے چہرے پر مکمل اطمینان چھایا ہوا تھا۔ ایزا اس وقت تھکی ہاری اپنے کمرے میں آئی جب اس کے کمرے کا دروازہ نوک ہوا۔ کم ان۔ فروا اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاں تو بھی کیسا گیا انٹرویو؟ فروا نے اس کی بیزاری سے شکل دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یار وہی سب ڈرامہ کال کریں گے جو کہ مجھے پتا ہے کہ کبھی آنی نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے میں نوکری تلاشتے تلاشتے مر جاؤں گی۔ ایسے نہیں کہتے منحوس، فروا نے اسے ٹوکا۔ موڈ کیوں اتنا خراب ہے تمہارا؟ ایک تو مجھے نوکری نہیں مل رہی، اوپر سے راستے میں اندھے لوگ چل رہے ہوتے ہیں، ہر کسی میں جا کر ٹکر مارتے ہیں۔ اس نے جاوید شاہ سے ہوئی ٹکر سوچتے ہوئے برا سا منہ بنایا تھا۔ اچھا چلو میں کھانا لگاتی ہوں اور تم فریش ہو کر آ جاؤ۔ وہ اپنے بیڈ پہ بیٹھا کسی سوچ میں غرق تھا۔ اچانک دروازہ نوک ہونے کی آواز پر وہ چونکا۔ جاوید شاہ کا رائٹ ہینڈ شیر خان جو کہ اس کا جگری دوست بھی تھا اندر داخل ہوا۔ مرشد جی کس سوچ میں ڈوبے ہیں؟ ایک دلکش حسینہ میری سوچوں پر حاوی ہو گئی ہے، جاوید نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ واہ جی، کب سے؟ کل سے شیر خان، اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مرشد جی حکم کرو۔ شیر خان مجھے وہ چاہیے، وہ بے خودی کے عالم میں بولا۔ مل جائے گی، میں 2 دنوں میں اسے آپ کے سامنے حاضر کر دوں گا مرشد جی۔ جاوید شاہ نے اسے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ الارم کے آواز پہ ایزا کی آنکھ کھلی۔ چل بے ایزا، پھر سے نوکری کے لیے دھکے کھانے ہیں، جلدی سے تیار ہو جا۔ اسے اٹھ کر منہ دھویا اور انٹرویو کے لیے تیار ہونے لگی۔ فروا کو خداحافظ کہہ کے وہ بس سٹاپ کے آگے کھڑی ہوگی۔ ابھی وہ بس کا انتظار کر رہی تھی جب ایک کالی جیپ اس کے سامنے آ کے رکی۔ بس سٹاپ پہ وہ اکیلی کھڑی تھی کیونکہ گرمی کی وجہ سے کسی نے گھر سے نکلنے کی زحمت نہ کی۔ اس نے اس جیپ کی طرف زیادہ دھیان نہ دیا۔ اچانک اس جیپ میں سے 2 آدمی نکلے، ان میں سے ایک نے اس کی کلائیوں کو پکڑا جبکہ دوسرے نے کلوروفارم لگا کر اس کے ناک پہ رکھا۔ اسے جیپ میں ڈال کر انہوں نے جیپ آگے بڑھا دی۔ اچانک اس جیپ کے ٹائر پہ کسی نے گولی چلائی اور ٹائر پنچر کر دیا۔ ان میں سے ایک لڑکا پستول تھامے باہر نکل کے ٹائر کو دیکھنے لگا، جیسے ہی جھکا جبکہ اس کے سر پہ کسی نے گولی چلائی تھی۔ وہ دوسرا لڑکا جلدی سے کار سے باہر نکل کر اس لڑکے کی ڈیڈ باڈی کے پاس آیا۔ وہاں ایک نقاب پوش کو کھڑا دیکھ کر گولی چلانے ہی والا تھا جب کسی نے اس کے سر پہ ڈنڈا مارا اور وہ نیچے گر کر پہلے نقاب پوش نے اس کے سر پہ گولی مار دی تھی۔ جب ایزا کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں پایا۔ اسے ایک کرسی پہ باندھا گیا تھا۔ اس کے سامنے ایک بڑا سا ٹیبل تھا۔ ٹیبل کے اس طرف 2 کرسیاں جس پر ایک 28 سالہ شخص براجمان تھا۔ دوسری کرسی خالی تھی۔ کمرے کی دائیں جانب شیشہ لگا ہوا تھا۔
جی تو مسیزا، امید ہے آپ مجھے سچ بتائیں گی. ایم آئی رائٹ؟ حماد نے سر کو خم دیتے ہوئے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا. ایم آئی سپوز ٹو سے یس؟ ایزا نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے اسے کہا. اسی میں آپ کی عافیت ہے. اسے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا. کون ہو تم اور مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ ایزا نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا. کام ڈاؤن. یہاں پر مجھے آپ سے سوالات پوچھنے کی اجازت ہے، آپ کو نہیں. اس نے ریلیکس سے انداز میں کہا. تو آپ جو کچھ جاوید شاہ کے بارے میں جانتی ہیں مجھے بتا دیں، میں آپ کو آپ کی مطلوبہ جگہ پر پہنچا دوں گا. ہاں مجھے لگتا ہے تم کوئی سستا نشہ کر کے آئے ہو. میں کسی جاوید شاہ کو نہیں جانتی وانتی. اب مجھے کھولو. وہ اپنے ہاتھوں کو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی. اوہ ریلی؟ تو پھر جاوید شاہ کے لوگ آپ کو اغوا کر کے کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اگر ہم آپ کو یہاں نہ لاتے تو یقیناً آپ وہاں ہوتی. اب آپ چپ چاپ بتائیں کہ جاوید شاہ کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں اور اس کا آپ سے کیا تعلق ہے. دیکھیے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میں اسے نہیں جانتی. میں نے اس کا نام پہلی بار سنا ہے. ایزانت نے تھوڑا نرم لہجہ اپناتے ہوئے کہا. آخر کو انہوں نے اس پہ احسان کیا تھا اسے بچا کے. مسیزا، آئی ایم وارننگ یو، اٹس لاسٹ ٹائم. ہاں. اس سے پہلے کہ حماد کچھ کہتا دروازہ کھلا اور ازلان سکندر اندر داخل ہوا. یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ جاوید شاہ کو نہیں جانتی، چھوڑ دو اسے. ایزا نے اس انسان کی طرف دیکھا جو شکل سے کافی سنجیدہ ہونے کے باوجود بھی کافی خوش شکل تھا. ہاں تو میں بھی گھنٹے سے یہی بکواس کری ہوں، مگر مجال ہے جو اس بے عقل انسان کو سمجھ آئی ہو. ایزا زیادہ دیر تک اپنا غصہ کنٹرول نہ رکھ سکی تھی. ازلان نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے آنکھیں بند کر کے لمبی لمبی سانس لی. ایجنٹ 10 کو بولو کہ انہیں اسی بس اسٹاپ پہ ڈراپ کر دے. ازلان یہ کہتا ہوا باہر چلا گیا. الو کے پٹھے، کسے بھیجا ہے تم نے اسے لانے کو؟ جاوید شاہ دھاڑا. مرشد جی کوئی ان پر نظر رکھے ہوئے تھا. جب ہم ان کی جیپ کے پاس پہنچے تو ان دونوں لڑکوں کی لاشیں وہاں پڑی تھی، مگر وہ لڑکی وہاں سے غائب تھی. شیر خان نے ڈرتے ڈرتے وضاحت کی. اگر وہ لڑکی مجھے 24 گھنٹے کے اندر نہ ملی تو جان لو کہ یہ 24 گھنٹے تمہاری زندگی کے آخری 24 گھنٹے ہو سکتے ہیں. جاوید شاہ دیوانہ وار بولتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا. واٹ آر یو سوئنگ؟ ازلان کو جیسے ان کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا. خیر میں نے ایسی کوئی مشکل بات نہیں کی جو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی. چیف نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا. آپ چاہتے ہیں کہ میں اس لڑکی کو اپنے گھر میں رکھوں، بٹ آئی ایم سوری. آپ کسی اور کو کیوں نہیں بول دیتے یہ سب کرنے کے لیے؟ ازلان نے جھنجھلاتے ہوئے کہا. اس کی وجہ بھی تم اچھی طرح جانتے ہو ازلان. میں تم پر سب سے زیادہ اعتبار کرتا ہوں اور میں اس لڑکی کو کسی اور کے گھر نہیں ٹھہرا کر رسک لے سکتا. چیف اس کا جواب انتظار کیے بغیر بولے تھے. تو تم اسے اپنے گھر لے جا سکتے ہو ابھی. ازلان بے دلی سے ہاں میں سر لاتا وہاں سے چلا گیا. جلدی کرو، مجھے گھر جانا ہے، ایزا نے بے صبری سے کہا. میڈم آپ پلیز تھوڑا ویٹ کریں، جیسے ہی سر باہر آتے ہیں ہم ان کے آرڈر لے کر آپ کو چھوڑ دیں گے، ان میں سے ایک شخص نے جواب دیا. اسی دوران ازلان چیف کے کمرے سے باہر نکلا اور ایزا کے پاس کھڑے دو آدمیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا. جلدی کرو، مجھے گھر جانا ہے. جلدی کرو، مجھے گھر جانا ہے، ایزا نے بے صبری سے کہا. میڈم آپ پلیز تھوڑا ویٹ کریں، جیسے یہ سر باہر آتے ہیں ہم ان کے آرڈر دے کر آپ کو چھوڑ دیں گے، ان میں سے ایک شخص نے جواب دیا. اسی دوران ازلان چیف کے کمرے سے باہر نکلا اور اس نے ایزا کے پاس کھڑے دو آدمیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بولا. ایجنٹ 21 اور ایجنٹ 10، آپ لوگوں کو جو کام دیا گیا ہے اس کو جلد از جلد پورا کر کے مجھے رپورٹ سینڈ کر دیں. او ہیلو، یہ کام وام بعد میں کرانا، پہلے مجھے میرے گھر چھوڑ کر آؤ، ایزا چڑھتے ہوئے بولی تھی. تم میرے ساتھ آؤ. ازلان نے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا. ایزا کا دل کیا کہ وہ اس شخص کا سر پھاڑ دے، سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو. وہ اس کے ساتھ کار میں بیٹھی. ازلان نے کار سٹارٹ کر کے سفر کا آغاز کر دیا. کار میں مکمل خاموشی تھی تب تک جب تک ایزا نے راستے پر غور نہ کیا. ارے ارے یہ کہاں لے کے جا رہے ہو؟ یہ میرا راستہ نہیں ہے. ایزا نے اسٹیئرنگ کو موڑتے ہوئے کہا، جبکہ ازلان اس کی حرکت پر تپ گیا تھا. میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں کہاں جا رہا ہوں. اب اپنا منہ بند رکھو. ازلان نے پھر سے اسٹیئرنگ سنبھالا. کار ایک بڑے سے بنگلے کے سامنے آ کے رکی. یہ مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ ایزا گھبرا گئی تھی. کار سے اترو. ازلان نے اسے اپنا حکم سنایا. میں نہیں اتروں گی، سمجھے تم؟ میں نہیں اتروں گی، ایزا نے چلاتے ہوئے کہا.
अजला ने दुरुस्तगी से कार का दरवाजा खोला और उसकी कलाई पकड़ के उसे नीचे उतारा और उसे खींचने वाले अंदाज में अंदर बंगले में ले गया। बंगले में घुप अंधेरा था। अजला ने एक कमरे में आकर उसका हाथ छोड़ा। देखो, तुम जितने पैसे कहोगी मैं तुम्हें। बंगले में घुप अंधेरा था। अजला ने एक कमरे में आकर उसका हाथ छोड़ा। देखो, तुम जितने पैसे कहोगे मैं तुम्हें दूंगी, प्लीज, ईजा ने फरियाद करते हुए कहा। वो इस वक्त भूल चुकी थी कि वो खुद बेरोजगार थी। तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ रुकोगी। जैसे ही हमारा मिशन पूरा हो जाएगा तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दिया जाएगा। अजलान वापस जाने लगा। और हाँ, इस घर को चारों तरफ से फौज ने घेरे में रखा है, इसलिए कोई चालाकी नहीं। वो बगैर मुड़े बोलता हुआ वहां से कमरे का दरवाजा बंद करके चला गया। वो नीचे आया तो हमाद उसका इंतजार कर रहा था। इस लड़की को यहाँ क्यों लाए? उसने कमर पर हाथ रखते हुए उससे पूछा। चीफ का ऑर्डर था, अजलान ने मुख्तसर सा जवाब दिया। इस ऑर्डर की लॉजिक हमाद उसका पीछे छोड़ने के मूड में न था। जावेद शाह इस लड़की को अगवा करने की फिर से कोशिश करेगा, इसीलिए। ओह, हमाद ने सब समझ आने की बात खुशी में ओह मुंह से निकाला था। पता करो इस लड़की का, अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो उसे ढूंढो, शेर खान ने वहां मौजूद 10 लोगों को तंबीह करते हुए कहा। तभी एक लड़का इस हॉल में दाखिल हुआ। खान साहब, आप बहुत खुश नसीब हैं। मैंने इस लड़की का पता लगवाया है और इस एजेंट 61 का भी। उसकी तस्वीर मिल गई है, मगर मजीद कुछ नहीं मिल सका। वो लड़का नखुबत से बोला। ओ वाह भाई काके, ये तूने तो बहुत अच्छा काम किया है। तू अब अपनी मुखबरी को चुप करना रख, कहीं उसका पता ना चल जाए। अभी तो इस खंजीर को भी पकड़ना है। अच्छा चल, अब मुझे सब कुछ बता। शेर खान ने उसे खुशी से कहते हुए मजीद हुक्म सुना दिया। या अल्लाह, कहाँ फंस गई मैं। ईजा कमरे में इधर उधर टहल रही थी। एक मिनट उसने कहा कि इस घर को फौज ने घेरे में रखा है, मतलब ये मेरे अल्लाह, कहीं ये किसी एजेंसी से तो नहीं। ईजा के ऊपर अजीब सा खौफ छा गया। ये लोग तो किसी को भी नहीं छोड़ते। वो अब अपनी आफियत की दुआएं मांगने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और एक शख्स नकाब पहने हुए इस कमरे में दाखिल हुआ और इसके सामने खाने की ट्रे रखकर कमरे को लॉक करके वापस चला गया। मुबारक जावेद शाह, मुबारक। शेर खान बाजू फैलाए जावेद के पास आया था। किस बात की मुबारक? जावेद शाह ने बेजारी से पूछा। तुम्हारी शहजादी का पता लगवा दिया है मैंने। शेर खान ने फातिहाना मुस्कुराहट लबों पर सजाए जवाब दिया। कब? क्या मतलब? मेरा मतलब कहाँ है? उसे यहाँ क्यों नहीं लाए? जावेद ने बेताबी से जवाब दिया। एक एजेंट के घर में है। मेरे मुखबरी ने मुझे सब मालूमात दी हैं। उसे जल्द अज जल्द यहाँ लाओ। वो सोफे में बैठी थी। ईजा, अगर तू यहाँ मर गई तो? अरे नहीं, ऐसे कैसे मर जाऊंगी? उसने अपने ही सोचों को झटका दिया। लेकिन ये लोग तो अपना काम पूरा होने के बाद मार देते हैं। अब उसे रोना आने लगा। दफ्तर दरवाजे पर दस्तक हुई। एक 25 साल की लड़की कमरे में दाखिल हुई। इसका कद नॉर्मल था, ईजा से 2 इंच लंबा, रंग साफ और आंखें डार्क ब्राउन थी। ओह, तो कैसा गुजरा है तुम्हारा एडवेंचर? ईजा ने नासमझी से उसे देखा। सॉरी, हाय, मेरा नाम नताशा है और तुम ईजा? ईजा लियाकत। ईजा ने उसे हाथ मिलाते हुए पूछा। आपको मेरा नाम कैसे पता चला? ओह स्वीटी, कम ऑन, मुझे भाई ने तुम्हारी सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी। भाई? ईजा उसे सवाली नजरों से देखते हुए बोली। ओह, हमाद मेरा भाई है। वैसे तो अजलान भी मेरा भाई है, मगर हमाद सगा है। माफ करना, मैं बहुत ज्यादा बोल गई क्या? नताशा ने शर्मिंदगी से पूछा। अरे नहीं, मैं भी बहुत ज्यादा बोलती हूँ। कैन यू बिलीव दिस के मैं। और इस तरह इन दोनों की बातों का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया था। अजलान सिकंदर अपने कमरे में पड़े स्टडी टेबल के ऊपर झुका तमाम फाइल्स का जायजा ले रहा था जब नताशा कमरे में दाखिल हुई। कितनी मरतबा कहा है कि दरवाजा नॉक करके आया करो, अजलान ने फाइल्स बंद करते हुए कहा। और मैंने भी कितनी बार कहा है कि जल्दी सो जाया करें, इतना काम ना किया करें। वो इसी के अंदाज में बोली। अजलान इसकी बात पर मुस्कुरा दिया। पर लग गए हैं तुम्हारे भी। वो तो लगने ही थे, उसने गर्दन तानते हुए कहा। खाना खा लिया है? अजलान ने सवाल पूछा। हाँ खा लिया, मैंने भी और उसने भी। उसने किसने? अरे भाई भूल गए, ईजा ने उसने आंखें दिखाते हुए जवाब दिया। ओ हाँ, उसने अपना हाथ अपने सर पर मारा। ओ हाँ, उसने अपना हाथ अपने सर पर मारा। आपने खाना खाया? नहीं। क्यों? बस वैसे ही, अजलान ने बेनियाजी से कहा। चले उठे। नताशा उसे बाजू से पकड़ती हुई बाहर ले गई।
7 दिन गुजर गए थे उसे इस बंगले में आए हुए। पता नहीं फरवा क्या करती होगी इस वक्त। वो रात के 12 बजे अपनी बेमानी सोचों में डूबी हुई थी। अचानक इस कमरे में अंधेरा हो गया। सब लाइटें अचानक से बंद हो गई। लिजा जिससे अंधेरे से खार थी, एक झटके से उठकर खड़ी हुई। खक खक, कौन है? उसने हकलाते हुए पूछा। हालांकि वहां पे कोई ना था। वो दीवानावार दरवाजे की तरफ भागी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की मगर वो लॉक था। दरवाजा खोलो। उसे लगा जैसे वो आज मर जाएगी। उसे हमेशा से अंधेरे से डर लगता था। उसकी सांस बंद होने लगती थी। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। वो हलक के बल चलाई। उसने जल्दी से तेज तेज सांसें लेना शुरू कर दी। उसे पैनिक अटैक हो रहा था। वो अंधेरे में टेबल पर पड़ी चीजें टटोलने लगी। वो बस रोशनी को तलाश रही थी। अचानक से एक शीशे का पीस नीचे आके गिरा और उसके पाँव को जख्मी कर गया। सिस, वो सिसक उठी। उसका चेहरा आंसुओं से तर हो गया। प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे निकालो प्लीज। वो बस दीवाना वार खटखटाते हुए दरवाजा चला रही थी। अजलान अचानक लाइट जाने से चुप करना हो गया था। पहली सोच जो उसके दिमाग में आई थी वो जावेद शाह की इजा को किडनैप करने की साजिश थी। इसलिए फौरन ऊपर की जाने भागा। जल्दी से उसने एजेंट 10 को आवाज दी ताकि वो इसके लिए चाबी लेकर दरवाजा खोल सके। मगर एजेंट 10 इतनी आवाजों के बावजूद भी वहां न आया। अजलान ने जोर से अपना कंधा दरवाजे पर मारा। कई मरतबा ये अमल करने के बाद आखिरकार दरवाजा खुल गया। उसने अपनी नजर सामने पड़े वजूद पर डाली। कोई नहीं कह सकता था कि ये हमेशा ऑल फॉल बकने वाली इजा थी। वो बहुत सहमी हुई थी। अजलान ने इत्मीनान की सांस ली। उठो यहाँ से। अजलान ने इसकी तरफ देखते हुए कहा। इजा ने खामोशी से अपने पाँव की तरफ इशारा किया जहाँ से खून रस रहा था। इसी दौरान लाइट ऑन हो गई। एजेंट 10 भागता हुआ ऊपर आया। सर, वो मैं जनरेटर ऑन करने गया था। उसने खुले हुए सांस लेते हुए उसे बताया। फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। उसने सर्द लहजे में उसे कहा। यस सर। एजेंट 10 वहां से चला गया। अजलान वहीं जमीन पर इजा के पास बैठ गया। इजा अजलान के बैठने पर जरा सिमट के बैठ गई। अजलान इसके पाँव के ऊपर झुकते हुए उसके पाँव का मायना करने लगा। ये तुम क्या कर रहे हो? इजा ने डरते हुए उसे पूछा। तुम्हारा पाँव चेक कर रहा हूँ, इसने बेनियाजी से जवाब दिया। अजलान ने इसका पाँव पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि इजा ने अपने पाँव पीछे खींच लिए। क्या मसला है? इसने कड़े तेवर लिए उससे पूछा। वो तुम मेरे पाँव को हाथ लगा रहे हो। हाँ, मैं जानता हूँ। अजलान को वो एक एबनॉर्मल इंसान लगी थी। तो तुम तो एक मर्द हो, तुम मेरे पाँव को क्यों हाथ लगा रहे हो? उसने मजाहा दी। हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि मैं एक मर्द हूँ और फिर भी मैं ऐसा कर रहा हूँ। इजा ने उसकी तरफ हैरानी से देखा। देखो, मर्द औरत और इज्जत के लिहाज से बराबर है और मुझे ऐसा करने में कोई शर्मिंदगी नहीं। इसी दौरान एजेंट 10 फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया और अजलान ने वो बॉक्स लिया और उसे सर के इशारे से जाने का कहा। अब अजलान उसकी बैंडेज कर रहा था और इजा इस शख्स को देख रही थी जिसने उसके खानदान की 15 साल की बताई हुई बातों को 2 सेकंड में गलत साबित कर दिया था। तुम्हें कहा था ना कि उसे जल्द अज जल्द यहाँ लेकर आओ। कहाँ है वो? जावेद शाह शेर खान का गिरबान पकड़ते हुए चीखा। मुर्शिद, वो कल का प्लान फेल हो गया। मुझे थोड़ा वक्त दो, शेर खान ने डरते हुए बोला। दफा हो जाओ यहाँ से। उसे धारते हुए उसने उसे धक्का दिया। नताशा, क्या मैं इस कमरे से बाहर जा सकती हूँ? मेरा दम घुटता है यहाँ। आज सुबह जब नताशा कमरे में आई तो इजा ने उससे सवाल पूछा। नताशा कुछ देर बाद उसके चेहरे पर छाई उदासी को देखा और फिर कुछ सोचते हुए बोली, हाँ क्यों नहीं। अब नताशा उसे बंगला दिखा रही थी और इजा अपनी जिंदगी के बारे में उसे बता रही थी। 7 लोग एक कमरे में मौजूद थे। सभी लोग 61 की बनाई गई स्लाइड्स को देख रहे थे, जो कि दरअसल जावेद शाह के घर का सिक्योरिटी सिस्टम मॉडल था और एजेंट 61 उन्हें अब अपने प्लान से आगाह करने लगा था। अजलान जब हमाद के साथ वापस आया तो इजा और नताशा को लाउंज में बैठकर देखकर ठटका। उसे बाहर किसने निकाला? हमाद ने इजा पर नजर डालते हुए पूछा, जो इस वक्त चिप्स खाते हुए टीवी देख रही थी और इसकी बातों को इग्नोर कर रही थी। ये अजीम कारनामा मैंने सरअंजाम दिया है। नताशा ने अपने फर्जी कॉलर खड़े किए। इसे समझा दो कि कोई चालाकी करने की जरूरत नहीं, वरना अंजाम की जिम्मेदार ये खुद होगी। अजलान सर्द महरी से कहता हुआ वहां से जाने लगा। तभी इजा ने उसके सामने आकर उसका रास्ता रोकते हुए कहा, वो क्यों मुझे समझाए? तुम डायरेक्ट ही मुझे क्यों नहीं कह देते? मुनाफिक शख्स। इजा ने अपना नाक सुकेरते हुए बोला। मुनाफिक से उसका इशारा रात वाले आजिज अजलान और अब वाले खड़ूस अजलान की तरफ था।
अजलान ने एक नजर सामने खड़ी इजा को देखा, फिर पीछे खड़े हमाद को देखा जो अपनी हंसी दबाए उसे देख रहा था, और फिर नताशा को देखा जो टीवी की तरफ मुंह करके उन्हें ना देखने की एक्टिंग कर रही थी। हालांकि तिरछी निगाहों से वो इन दोनों को ही देख रही थी। अजलान ने अपना रुख दोबारा इजा की तरफ किया और उसका बाजू पकड़ के उसे अपने रास्ते से हटाया और अपने कमरे की तरफ तेज तेज कदम उठाता चला गया। वेल डन इजा लियाकत, वेल डन। हमाद ने तालियां बजाते हुए उसे सराहा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, मुझे भूख लगी है, अपने दोस्त से बोलो मेरे लिए खाने का बंदोबस्त करे। इजा ये कहते हुए ऊपर अपने कमरे में चली गई, जबकि नताशा और हमाद एक दूसरे को देखकर दोबारा हंस दिए थे। दरवाजा नॉक होने की आवाज पर अजलान ने दरवाजे की तरफ देखा। आ जाओ भाई, हमाद कमरे में दाखिल हुआ। तुमने देखा उसे? हमाद ने अजलान को देखते हुए पूछा। किसे? अजलान अपने बेड पे गिरते हुए उससे पूछा। उसी लड़की को जिसने आज तुम्हारा रास्ता रोका। हमाद भी उसके साथ ही बेड पर बैठ गया। हाँ। अजलान ने दोनों हाथ अपने सर के पीछे बांधे। वो पागल है, अजलान ने आंखें बंद करते हुए बड़बड़ाया था। पता नहीं क्यों इजा को अजलान अच्छा लगने लगा था, और ये मौजा उस रात हुआ जब उसने उसके पाँव की बैंडेज की थी। वो अब भी उसी को सोच रही थी, और ये सोचते सोचते वो नींद की वादियों में खो गई। इजा को महसूस हुआ कि उसके पास कोई मौजूद है। वो अचानक हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसे घबराहट हो रही थी। वो उठकर कमरे से बाहर निकल गई। अब इसके दरवाजे को लॉक नहीं किया जाता था। वो रात के 3 बजे बाहर ग्राउंड में आकर टहलने लगी। उसने महसूस किया कि कोई उस पर नजर रखे हुए था। उसने अपनी दाईं जानिब देखा। कौन है? वो इसकी तरफ देखते हुए बोली। अचानक उसके नाक पर किसी ने रुमाल रखा। वो अपने आप को छुड़वाने की तगोदो करने लगी। आखिरी ख्याल उसके दिल में अजान सिकंदर का आया। वो इसे पकाना चाहती थी, मगर ऐसा मुमकिन न हो सका। वो अपने हवास खोने लगी थी। आज जब एजेंट 10 उसके कमरे में खाना देने गया तो वो वहां मौजूद न थी। उसने फौरन अजान को उसकी इत्तला दी। अजान ने पूरा घर छान मारा, मगर वो कहीं ना मिली। ये क्या हो गया? वो ऐसे कैसे भाग सकती है? हमाद ने अपना सर पकड़ते हुए बोला। उसे अगवा किया गया है, अजान ने कुछ सोचते हुए बोला। मगर कौन करेगा ऐसा? हमाद ने परेशानी से पूछा। जावेद शाह। अजान ने हमाद के चेहरे को गौर से देखते हुए कहा। इजा को जब होश आई तो वो एक शानदार कमरे में बेड पर लेटी हुई थी। वो कमरा नहायत बड़ा और खूबसूरत था। यकीनन इस पर बहुत खर्चा किया गया था। वो कमरे की एक एक चीज को गौर से देख रही थी जब जावेद शाह कमरे में दाखिल हुआ। ओह स्वीट हार्ट, कैसा महसूस करी हो? इजा का उसे देखकर पारा हाई हो गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो चीपस्टर? इजा गुस्से से बोली। ओह तो मेरी बिल्ली, मुझे ही मियाओ, जावेद शाह ने खबासत से कहा। बकवास बंद करो घटिया इंसान, तमीज से, वरना जब अपनी आई पर आया तो तुम बहुत पछताओगी। जावेद ने उसके बाल दबोचते हुए कहा। लानत है तुम्हारी आई पर और लानत है तुम पर, इजा ने ये कहते हुए उसके मुंह पे थूका। जावेद शाह उसकी हरकत पर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। थप्पड़ इतनी जोर का था कि इजा का सर बेड के कोने से टकराया और उसके सर से खून बहने लगा। उसकी आंखें अब बंद हो रही थी। मैं तो कहता हूँ कि लगे हाथों इस लड़की से एजेंट 61 के बारे में पूछ ले मुर्शिद जी, शेर खान उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला। इस लड़की को इज्जत रास नहीं, जो पूछना है जैसे पूछना है पूछ लो, अब ये मेरे किसी काम की नहीं। जावेद शाह ने हकारत से इजा को देखते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल गया। उसे इजा के थूकने पर बेतहाशा गुस्सा आया था। जावेद शाह सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, मगर बेइज्जती नहीं, वो भी किसी लड़की के हाथों, बिल्कुल भी नहीं। चीफ, हमें इस प्लान पर अमल करने के लिए आपकी इजाजत चाहिए। हमाद ने चीफ को सारा प्लान अजलान का बनाया हुआ बताया और आखिर में उनसे इजाजत चाहिए। अजलान, क्या तुम तैयार हो? चीफ ने अजलान की तरफ देखते हुए कहा और उससे पूछा, जो किसी गहरी सोच में गुम था। अजलान सिकंदर कहाँ गुम हो? हमाद ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए सवाल किया। हाँ, कुछ नहीं, अजलान ने हड़बड़ाते हुए बोला। तो एजेंट 61, क्या तुम तैयार हो? चीफ ने उसे अपनी नजरों के हसार में लेते हुए पूछा। यस सर, अजलान चटानी लहजे में बोला था। क्या बेहूदगी है ये? इजा अपने आप को रस्सियों से आजाद करने की कोशिश करते हुए बोली। कौन सी बेहूदगी? शेर खान ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। जिसका दिल करता है मुझे पकड़ कर बांध देता है। हद है, इंसान थोड़ा तहजीब से भी तो पेश आ सकता है ना। इजा फिर से अपने पुराने लहजे में वापस आ गई थी। अच्छा चलो फिर शाबाश, मुझे एजेंट 61 के बारे में बताओ। शेर खान उसके सामने कुर्सी पर बैठते हुए बोला। कौन एजेंट 61? इजा ने उसकी तरफ आंखें सकेटते हुए कहा। इस इंसान को पहचानती हो? शेर खान ने इजा के सामने एक तस्वीर लहराते हुए कहा। इजा ने जब इसकी तस्वीर की तरफ देखा तो वो साकित रह गई। वो अजलान सिकंदर था। उसे पहचानने में वो कैसे देर कर सकती थी?
وہ جانتی تھی کہ اسے کسی بھی صورت میں اذلان کو ایکسپوز نہیں کرنا۔ وہ شخص اسے ایک نئی امید لگتا تھا۔ بولو، اس کا نام کیا ہے؟ شیر خان نے اسے سختی سے پوچھا۔ میں اسے نہیں جانتی۔ ایزا نے اپنے تاثرات چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ وہ کسی طرح بھی اپنا خوف چھپانا چاہ رہی تھی۔ دیکھو، میں تم سے پیار سے پوچھ رہا ہوں، بتاؤ کیا ہے اس کا نام؟ شیر خان نے اس کا گال تھپتھپایا۔ جب میں اس کے بارے میں جانتی ہی نہیں تو کیا بتاؤں؟ ایزا اپنے لبوں کو کاٹتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، تم اپنی چال چل لی، اب میری باری۔ ایزا نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ ٹائیگر، وہ چلایا، اپنی ڈیوٹی سر انجام دو، شیر خان نے مسکراتے ہوئے اس سامنے سے مضبوط جسامت والے آدمی سے کہا۔ ٹائیگر آگے بڑھا اور ایک ڈبے میں ایک باریک سا راڈ نکالا جو تازہ گرم کیا گیا تھا۔ غالباً اس ڈبے میں دہکتا کوئلہ تھا۔ ایزا اس کی اگلی حرکت کا اندازہ لگا رہی تھی جب ٹائیگر نے آگے بڑھ کر اس کے ایک بازو پر راڈ رکھ دیا۔ ایزا ایک دم سے چیخ اٹھی۔ اسے راڈ کی جگہ سے آستین وہاں سے جل گئی تھی اور اس کی بازو وہاں سے جل گئی تھی۔ اس نازک سے وجود پہ یہ جلن اس قدر شدید ہوئی کہ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ بتاؤ کون ہے یہ؟ شیر خان نے اسے پھر سے سوال کیا۔ نہیں جانتی میں اسے، ایزا حلق کے بل جلائی۔ اوکے، شیر خان نے ٹائیگر کو اشارہ کیا۔ اس نے اب وہی راڈ دوبارہ اس کی دوسری بازو پہ رکھ دیا۔ آہ، ایزا کو لگا کہ اس کا بازو اب کبھی ہل نہیں پائے گا۔ تکلیف تھی کہ کلیجہ پھٹ رہا تھا، مگر اس تکلیف سے رہائی کی قیمت اذلان سکندر تھا اور ایزا کے لیے یہ بہت بڑی قیمت تھی۔ بتاؤ کون ہے یہ؟ شیر خان نے بالوں سے پکڑ کر اس کا سر اوپر کیا۔ میں نہیں جانتی، وہ سکسکتے ہوئے بولی۔ ٹائیگر نے اس کے بازو پہ ذرا نیچے کر کے راڈ رکھا اور یہ عمل کئی مرتبہ دہرایا گیا۔ وہ کمرہ اب ایزا کی چیخوں اور سسکیوں سے گونج رہا تھا۔ تکلیف کیا ہوتی ہے، کوئی اسے پوچھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جلن کی تکلیف زیادہ ہے یا پھر اذلان کو کھو دینے کا خوف۔ نہیں جانتی تم اسے؟ شیر خان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسے یہ سوال 12ویں مرتبہ پوچھا اور جواب پھر وہی تھا۔ ایزا نے نامے سر ہلایا۔ ٹائیگر نے اس کے بازو پر پھر سے راڈ رکھا۔ اب کی بار ایزا چلا بھی نہ سکی، اسے اس کی روح کھینچ رہی تھی۔ تکلیف اپنی حد سے گزر گئی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ اسے اس کی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی اور آنکھوں کے سامنے اذلان سکندر کا چہرہ آیا، مگر یہ آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ وہ اب ہوش سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ شابیلا کے باہر ایک بڑی سی ویگن آ کے رکی۔ کدھر؟ واش نے ویگن کے ڈرائیور سے پوچھا۔ مال پہنچانا ہے، نقاب پوش نے جواب دیا۔ اسی اسنا میں ڈگی میں بیٹھا اذلان دھیرے سے ڈگی سے باہر نکلا اور ویگن کے نیچے لیٹ گیا۔ چیکنگ کرنی پڑے گی مجھے۔ واچ مین نے ویگن کے دروازے کے قریب آیا۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا تو پوری ویگن سفید پٹیوں سے بھری ہوئی تھی، سفید پیکٹوں سے بھری ہوئی تھی۔ جانے دو جانے دو، وہ واچ مین گیٹ پر کھڑے 5 راج کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ جیسے ہی ویگن سٹارٹ ہوئی، اذلان نے اس کے نچلے حصے کو پکڑ کر ویگن کے ساتھ چپک گیا اور 5 منٹ بعد وہ ایک بڑی سی عمارت کے سامنے موجود تھا۔ اذلان ویگن کے نیچے محتاط سا ہو کے نکلا۔ یہاں اتنے لوگ نہیں تھے۔ اذلان سکندر اپنی مخصوص چال چلتا سیکیورٹی روم کے باہر کھڑا ہو گیا۔ اسی دوران ایک شخص وہاں سے گزرا۔ اذلان نے اس کو دیکھ کر موبائل نکالا اور سیٹیاں بجانے لگا۔ اس آدمی نے غور سے اسے دیکھا اور کندھا اچکاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اذلان نے سکھ کا سانس لیا۔ اب وہ کمرے میں داخل ہوا اور وہاں 2 لوگ موجود تھے۔ ابے کون ہے تو؟ ان میں سے ایک نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اذلان نے تیزی سے اس لڑکی کا سر پکڑ کر پیچھے کی طرف موڑا اور آواز سے اس کی گردن ٹوٹی تھی۔ یہ سب کچھ اتنا تیزی سے ہوا کہ دوسرا لڑکا بھی پستول نکال ہی نہیں رہا تھا کہ اذلان نے اس کے بازو پر اپنی ٹانگ ماری اور پھر اس کے سر پر ایک گولی مار دی۔ اس کے بعد اذلان سکندر اپنے بال پیچھے کرتا ہوا کمپیوٹر پر جھک کر ان کا سیکیورٹی سسٹم ہیک کرنے لگا تھا۔ ڈن۔ 3 منٹ بعد اذلان نے ایک مائکرو فون میں یہ جملہ کہا۔ ایزا کو جب ہوش آیا تو اس کمرے میں موجود تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب اس کے ہاتھ پاؤں آزاد تھے، مگر اس کے بازو میں جان نہیں تھی۔ اس کے بازو پر جگہ جگہ جلنے کے نشان تھے۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، آستین جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ میں کتنی ناشکری تھی، میں ایک جاب نہ ملنے پر اتنے شکوے کرتی تھی اور اب میرا کیا حال ہو گیا، وہ بھی اس شخص کے پیچھے جسے ملے ہوئے مجھے صرف 2 ہفتے ہوئے ہیں۔ مجھے تو اس کے نام کے علاوہ اور کچھ پتا بھی نہیں۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی۔ یقیناً انسان بہت بڑا ناشکر ہے۔ یہ دل ہی ہے جو اسے خواہشوں کا سیلاب امڈاتا رہتا ہے۔ یہ خواہشیں ہمیں کبھی بادشاہ نہیں بنے دیتی، عمر بھر فقیر بنائے رکھتی ہیں۔ ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو دوسری شروع، دوسری پوری ہوتی ہے تو تیسری شروع۔ انفیکٹ یہ خواہشیں ہمیں انسان بنائے رکھتی ہیں۔
इन ख्वाहिशों के पीछे भाग भाग के हलकान होना ही शायद जिंदगी है। ये ख्वाहिशें ही तो हमारे खुदा से ताल्लुक बनाए रखती हैं। जैसे ही ख्वाहिश खत्म, खुदा से ताल्लुक खत्म, और ये ताल्लुक तब तक बहाल रहता है जब एक नई ख्वाहिश सर उठाती है। सराता आरज़ू होने में बंदा कर दिया हमको, वरना हम खुदा थे गर्दिल बेमर्दा होते। अचानक बाहर फायरिंग की आवाज आने लगी। ये क्या हो रहा है बाहर? शेर खान ने अपने एक आदमी से पूछा। साईं, वो हम पे हमला हुआ है, इस शख्स ने डरते हुए लहजे में कहा। क्या? शेर खान के चेहरे की हवाएं उड़ गई। वो दौड़ता हुआ जावेद शाह के कमरे में गया, मगर वहां जाकर उसकी स्थिति गुम हो गई। जावेद शाह वहां पर नहीं था, इसका मतलब भाग गया भगोड़ा। शेर खान ने गुस्से से मुखिया भेजी। एजेंट 62, हमाद क्या अपडेट है? अजलान माइक्रोफोन में बोला। हमने बाहर का रास्ता क्लियर कर दिया है, मैदान साफ है एजेंट, हमाद पुरजोर शशे में बोला। ओके, अब तुम अपनी टीम को लेकर सब कमरों की तलाशी लो, मैं तुम्हें टॉप फ्लोर पर मिलूंगा। अजलान तेजी से कहता हुआ अपने रास्ते पे आगे बढ़ने लगा। जितने लोग उसके सामने आ रहे थे वो उन सब के जिस्म के पार से एक एक गोली गुजारता जा रहा था। अब वो जावेद शाह के कमरे में मौजूद उसके डॉक्यूमेंट्स का जायजा ले रहा था। डैम इट! अजलान ने अपना हाथ मुक्का बना के दीवार पे मारा। जावेद शाह काफी चालाक था, वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ ले गया था। किसी को जावेद शाह मिला? अजलान ने माइक्रोफोन से अपनी टीम से पूछा। सर, हमने सब जगह ढूंढ लिया है, मगर वो कहीं नहीं है, एजेंट 21 ने जवाब दिया। ओके, तुम लोग इसके घर को सील कर दो। यस सर। हमाद ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंचा। वो संभल संभल कर अपने कदम बढ़ा रहा था। उसने अपने फ्लोर का पहला कमरा खोला तो वहां दो आदमी मौजूद थे। एक का बाजू पकड़कर हमाद ने अपने करीब किया और उसकी कन पट्टी पर पिस्तौल तान के गोली उसके आर पार कर दी। दूसरे आदमी ने जैसे ही हमाद पर गोली चलाई तो हमाद ने इस आदमी का मुर्दा जिस्म सामने करके अपने आप को बचाया और इस आदमी के ऊपर मुर्दा आदमी की लाश फेंकी। वो आदमी अभी संभला ही नहीं था कि हमाद ने इसका दिल का निशाना तान के गोली आर पार कर दी। अब हमाद दूसरे कमरे में गया, उस कमरे का दरवाजा खोला और अपने सामने उस अधमरे वजूद को देखा जो उसे सख्ता सा हो गया। हाँ, अचानक गोली की आवाज सुनाई दी। हमाद ने अपनी बाएं जानिब देखा तो एक शख्स पिस्तौल थामे नीचे गिर रहा था। उसके सीने से खून बह रहा था। वो गालबन हमाद पे गोली चलाने वाला था। अब हमाद ने अपने दाएं जानिब देखा तो अजलान सिकंदर हाथ बांधे उसे देख रहा था। ध्यान किधर है तुम्हारा? अजलान ने उसे घूरते हुए पूछा। अजलान? हमाद ने इतना कहकर कमरे के अंदर देखा। अजलान सिकंदर की सिक्स सेंस ने उसे किसी अनहोनी होने का इशारा दिया। हमाद की निगाहों के ताकुब में जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो 1 मिनट के लिए उसके कदम जमीन पे जम गए। ईजा ने थोड़ी देर बाद अपना सर ऊपर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं, जिनमें पानी बह रहा था। अजलान सिकंदर ने उसका जायजा लिया। उसकी आस्तीनें फटी हुई थी, बाजू पे जा बजा जलने के निशान थे। हमाद ने अजलान के कंधे पे हाथ रखा, जबकि अजलान सिकंदर ईजा से नजरें चुरा के अपनी आंखें नीचे कर गया। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो ईजा को अगवा कर लेता। इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कैसे? हमाद अपना सर थाम के बोला। हम में कोई गद्दार मौजूद है, अजलान ने सख्त लहजे में कहा। लेकिन कौन? यही तो पता करना है हमाद क्यानी, अजलान सिकंदर पेन को अपनी उंगलियों में दबाते हुए बोला था। अजलान, नताशा, चीफ और हमाद ईजा के कमरे में मौजूद थे। अजलान ड्रेसिंग टेबल के से टेक लगाए खड़ा था, जबकि उसकी नजर जमीन को घूर रही थी। जबकि चीफ एक कुर्सी पर बैठे बेड पे ईजा के साथ नताशा उसके हाथ पे थामे बैठी थी ताकि उसकी कंफ्यूजन को दूर कर सके। जबकि हमाद चीफ के दाएं जानिब खड़ा था। तो बेटा बताएं, कहीं जावेद शाह ने आपके साथ? नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो नताशा के हाथों पे अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए चीफ की बात को काटते हुए बोली। हमाद ने अजलान की जानिब देखा, जिसके चेहरे पर कोई तासुर न था। क्या आप बता सकती हैं कि आपसे किस बारे में पूछा गया था? चीफ ने उससे राजाना तरीके से पूछा। ईजा ने एक नजर अजलान सिकंदर को देखा, जो अब भी जमीन को ही भू रहा था, जैसे उसे किसी जरूरी काम से जाना हो। एजेंट 61 के बारे में, ईजा ने चीफ की तरफ देखते हुए जवाब दिया। हमाद और चीफ ने बेक वक्त अजलान सिकंदर की तरफ देखा, जो कि ईजा को ही देख रहा था। अजलान के बारे में? चीफ ने हैरानी से बोला। ईजा ने हाँ में सर हिलाया। तो तुमने क्या जवाब दिया? इस बार हमाद ने सवाल किया। वही जो मुझे देना चाहिए था, ईजा ने बेनियाजी से कंधे अचकाते हुए बोला। क्या? अब की बार चीफ मुतज्जिद से बोला। मैं एजेंट 61 को नहीं जानती, ईजा ने मुतमईन से अंदाज में जवाब दिया। अजलान सिकंदर ने लंबी सांस खींची और अपनी पेशानी को अपने हाथों से रगड़ा। क्या क्या किया उन्होंने तुम्हारे साथ? चीफ ने इससे सवाल किया, जिस पर ईजा उन्हें अब सारी तफसील बता रही थी।
और अजलान सिकंदर जमीन को टिकटिकी बांधे देख रहा था। वो बालकोनी में खड़ा आसमान को घूर रहा था। क्या वो इज़ा का मुजरिम था? वो इस नुक्ते पे आकर अटका था। रात की ठंडी हवा इसके चेहरे से टकराई, उसके चेहरे को सुर्ख कर रही थी। अगर इज़ा इस घर में ना आई होती तो इसके साथ ये सब कुछ ना होता। अजलान सिकंदर ने आंखें मूंद ली। कुछ देर यूं ही खड़े रहने के बाद उसने सांस हवा में खारिज की। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और अब तुम्हें ठीक करना होगा अजलान सिकंदर। वो फैसला कर चुका था और अब उसे इस फैसले पे बहुत जल्द अमल करना था। दरवाजे पे दस्तक हुई तो इज़ा ने सोफे पर दुपट्टा लेते हुए दरवाजा खोला। अजलान सिकंदर को अपने कमरे में खड़ा देखकर हैरानी हुई। अंदर आ सकता हूँ? अजलान ने इज़ा की तरफ देखते हुए पूछा। कितना अजीब शख्स है भला, उसे इजाजत की क्या जरूरत, इसका तो अपना घर है। इज़ा ने अपनी सोचों को झटका देते हुए उसे रास्ता दिया। अजलान सोफे पर आकर बैठ गया, जबकि इज़ा बेड पर बैठी उसके चेहरे को पढ़ने की नाकाम सी कोशिश कर रही थी। वो मुझे तुमसे बात करनी थी। जी कहिए। अजलान इसके अल्फाज पे चौंका। जाहिर है इतनी इज्जत जो दे रही थी। अजलान कुछ देर खामोश बैठा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बात कैसे शुरू करे। इज़ा की नजरें अजलान सिकंदर पर अटकी थी। ग्रे टी शर्ट के ऊपर मैरून कलर का खुली जिप वाला अपर पहने हुए यकीनन वो बहुत हैंडसम था। लानत है इज़ा तुम्हारी सोच पर। उसने खुद ही सोच पर अपनी सोच पर लानत भेजी। वो मुझे क्या मुझे इज़ा ने पूरी आंखें खोलते हुए कहा। अजलान ने एक लंबी सांस ली। मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। अजलान ने अपने हाथों की लकीरों पर उंगलियां फेरते हुए कहा। इज़ा को तो 230 का वॉल्ट झटका लगा था। वो भला इससे निकाह क्यों करेगा? क्या वो मुझ पर तरस खा रहा है? इज़ा को अब इस पर मजीद गुस्सा आया। मगर मैं नहीं चाहती। अजलान ने आंखें सिकेट कर इसकी तरफ देखा। वो अब उठकर खड़ा हो गया। क्यों? वो चेहरे पर सख्त तासुर लिए उसे घूर रहा था। क्योंकि तुम मुझ पर तरस खा रहे हो, इज़ा ने बुरा सा मुंह बना के कहा। अजलान अब भी उसे सख्त निगाहों से घूर रहा था। है ना, तुम खा रहे हो ना तरस मुझ पर? इज़ा ने उस यकीन दहानी चाहिए। दिल ने शिद्दत से ख्वाहिश की कि अजलान जवाब का जवाब ना में हो। मैं तुम्हें किसी भी तरह की वजाहत नहीं दूंगा। आज रात को हमारा निकाह है। अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर लो। ये कहते हुए वहां रुका नहीं बल्कि तेजी से बाहर निकल गया और इज़ा बंद होता दरवाजा देखने लगी। ये क्या था? हाँ हमाद, टीम के तमाम मेंबर्स को सीक्रेट रूम में लाओ। इज़ा के कमरे से निकलकर उसने फौरन हमाद को कॉल करके जल्द अज जल्द ये काम कर देना चाहा था। तकरीबन 30 मिनट के बाद वो एक बड़े से कमरे में मौजूद थी। चीफ सदारती कुर्सी पर बैठे अजान को देख रही थी, जो कि पूरे कमरे में टहल रहा था। टीम के बकाया मेंबर्स भी उसे देखने में मसरूफ थे। चीफ ने अपना गला खंगारा। अजलान रुका और टेबल से जरा दूर हटके जा खड़ा हुआ। हमारी टीम में कितने अफराद हैं? अजलान के इस बेतुके सवाल ने तमाम टीम मेंबर्स को उसकी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। चीफ को और आपको निकालकर 6 सर, एजेंट 32 बोला। कौन कौन? अजान सिकंदर पेन को अपनी उंगलियों में गमाता हुआ बोला। एजेंट 21, एजेंट 32, एजेंट 62, एजेंट 10, एजेंट 12, एजेंट 15 और आप एजेंट 61। एजेंट 12 ने उसे फिर तफसील से आगाह किया। क्या आप सब जानते हैं कि गद्दारी की सजा क्या है? अजलान ने अपने हाथों में मौजूद पेन को गौर से देखते हुए पूछा। सब लोगों ने इसकी तरफ नासमझी से देखा। पता है एजेंट्स, गद्दार के खून की बू ही अलग होती है, बिल्कुल हराम जानवरों के खून की तरह। चीफ ने आंखें सकेटते हुए इस बेनियाज बादशाह को देखा जो पेन के साथ खुद को मसरूफ किए हुए था। और मुझे इस कमरे से वो बू आ रही है। अजलान ने एक नजर इन लोगों पर डालते हुए हकी अंदाज में कहा। अब देखना ये है कि ये बू किसके खून से आ रही है। अजलान ने अपने पॉकेट से एक तेज खंजर निकाला। लेकिन इस गद्दार का पता करें कैसे? इसका एक तरीका है जेंटलमैन। अब अजलान सिकंदर इस टेबल के गिर्द चक्कर लगाने लगा। पता है गद्दार का खून काला होता है। वो एजेंट 12 के पास झुकते हुए बोला। कैन यू बिलीव दिस? एजेंट 12 ने खौफ के मारे नामे सर हिलाया। बट आई कैन प्रूव दिस। अजलान ने अपने बाजू फैलाते हुए बोला। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये कहते ही अजलान तेजी से एजेंट 10 की तरफ मुड़ा और वो खंजर उसकी गर्दन के बस में घूम दिया। खून की एक लकीर उसकी गर्दन से बहने थी। तुम्हें याद रखना चाहिए था कि गद्दारी की सजा मौत होती है। रात को वो चीफ और हमाद के साथ घर पहुंचा तो नताशा वहाँ पहले ही से मौजूद थी। नताशा, तुम ऊपर जाकर इज़ा को देखो, मैं मौलवी साहब को लाता हूँ। हमाद उसे हदायत देकर बाहर चला गया, जबकि अजलान और चीफ सियासत की बातें लेकर बैठ गए थे। अरे ये क्या, यहाँ तुम ऐसे क्यों बैठी हो? नताशा उसे बेड पर बैठा देखकर बोली। नताशा? हाँ,
मुझे इससे निकाह नहीं करना, वो घुटी घुटी आवाज में बोली। तुम्हें अब क्या मसला है? तुम तो उसे पसंद करती हो ना? नताशा ने उसे हैरानी से कहा। क्या? इजा को खुद संभालते हुए बोली थी। हाँ, सबको पता है। नताशा ने कंधे उठाए। सबको? किसको? मुझे, हमाद को और अरसलान को भी शायद। उसने अपने सर पे उंगली रखते हुए कहा। वो मुझ पर तरस खा रहा है ना, और मैं नहीं चाहती कि वो तरस को इस रिश्ते की बुनियाद बनाए। उसने अपना खदशा जाहिर किया। नताशा अब उसके पास बेड पर बैठ गई। देखो इजा, अल्लाह ने हमारे नसीब में जो लिखा होता है वही हमारे लिए बेहतर है। तुम्हें बस खुद को उसके रजा के मुताबिक छोड़ देना चाहिए। फिर ये अजान सिकंदर क्या चीज है? पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में ढेर हो जाएगी। उसने उसकी ठोड़ी को छूते हुए पूछा। इजा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला दिया। इजा लियाकत, क्या आपको अजलान सिकंदर के साथ बमा 50 लाख हक महर निकाह कबूल है? मौलवी साहब की आवाज गूंजी। सोच लो इजा, इस पर बोझ बन गई तो। इजा ने गहरी सांस ली। इजा कह दे, वरना तो इस पे जबरदस्ती मुसल्लत कर दी जाएगी। नहीं, मुझे ये निकाह कबूल नहीं। इजा ने जोर से आंखें बंद करते हुए जल्दी से बोल डाला। अजलान सिकंदर के माथे पर बल पड़े। वो गुस्से से सोफे से उठा। जानता था तुम्हें आराम से बात समझ नहीं आएगी। अजलान ने अपने हाथ में रिवॉल्वर पकड़ा और हिमाद की आंखें तो जैसे फट ही गईं। क्या ये पागल है? हमाद ने दिल में सोचा। और वहां चीफ कभी अजलान को तो कभी इजा को देखते हुए देख रहे थे, जो कि वो खुद भी बुत बन गई थी। बोलो, कबूल है? वो रिवॉल्वर इजा पर ताने खड़ा था। इजा कभी उसको तो कभी उसके रिवॉल्वर को देखती। मैंने कहा बोलो, वो दहाड़ा था। इजा लाकियत, क्या आपको अजलान सिकंदर के साथ 50 लाख हक महर निकाह कबूल है? कबूल है। इजा की आवाज लखड़ाई थी। इजा लियाकत, क्या आपको अजलान सिकंदर के साथ निकाह कबूल है? जी कबूल है। कबूल है। और अजलान सिकंदर ने गहरा सांस लेते हुए मुस्कुराहट अपने लबों पर सजाई थी। बदतमीज, जाहिल, मुनाफिक, अल्लाह करे तुम। आह, वो अजान पर गुस्सा कर रही थी। अब आए तो सही, उसको छुट्टी का दूध याद दिलाऊंगी। मेरा नाम भी इजा लियाकत। वो खुद ही सोच रही थी। अजलान अपने कमरे में लेटा था। वो इसका सामना फिलहाल नहीं करना चाहता था। एजेंट 12 ने खौफ के मारे नाम में सर हिलाया था। बट आई कैन प्रूव दिस। सुबह अजलान उठ के कमरे से नीचे आया तो लाउंज में ईजा के साथ नताशा और हमाद को देखकर हैरान हुआ। तुम लोग इस वक्त? अजलान ने अपनी कलाई पर बंदी घड़ी को देखा। तो उठ गए तुम? बोलने वाली ईजा थी। पता है क्या टाइम हो रहा है? ईजा ने अपने भुएं उठाते हुए बोला। अजान सिकंदर चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। अरे ये क्या, आप किचन में जाके नाश्ता बनाए ना। हमाद और नताशा ने भी नाश्ता नहीं किया और आपकी बीवी भी कल रात से भूखी है। अजान इसके तुमसे अब तक के सफर पर गौर कर रहा था। ओहो। ईजा ने अपने सर पर हाथ मारा और फिर इसके पास गई और अजान सिकंदर का बाजू पकड़कर उसे किचन में ले गई। उसके सामने मसालों वाला डब्बा रखा और एक रेसिपी बुक खोलकर उसके सामने रख दी। उम्मीद है तुम आधे घंटे से ज्यादा वक्त नहीं लोगे। ईजा अपने कमरे पे हाथ रखते हुए बोली थी। अब कुछ ज्यादा ही बोल रही मिस ईजा लियाकत। अजान सिकंदर ने एक एक लफ्ज चबा कर कहा। ओह नहीं, ईजा अजलान सिकंदर। उसने अजलान की इस्लाह की और फिर दोबारा लाउंज में इन दोनों के पास जाकर बैठ गई। चीफ, मुझे जावेद शाह तक की अब सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। अजान सिकंदर चीफ से फोन पे बात कर रहा था। ओके, आई एम वेटिंग। अजलान ने कलाई पर बंधी घड़ी को देखा और फोन बंद कर दिया। आफ्टर 5 months। मुझे फरवा से मिलने जाना है। जब से इन दोनों का निकाह हुआ था, इजा पूरे घर में अपनी मर्जी से धुनधनाते फिरती थी और इस वक्त वो अजान के कमरे में अचानक आ थी। कौन फरवा? मेरी दोस्त। तो जाओ। क्या मतलब? क्या मतलब है तुम्हारा? शोहर हो तुम मेरे, तुम्हारी जिम्मेदारी है। इजा ने चिढ़ते हुए बोला। ओ अच्छा, क्या याद दिला दिया कि मैं आपका शोहर हूँ मिस इजा। कल ले जाऊंगा अगर टाइम मिला तो। अजलान ने जान छुड़ाते हुए कहा। बड़ा आया। वो दिल में सोचती हुई कमरे से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद करके जाओ। अजलान सिकंदर ने आवाज लगाई। खुद ही कर लो। किस पागल से पाला पड़ गया है मेरा। अजलान ने अपना सर खुजाने लगा था। जावेद शाह के बारे में वो सारी इंफॉर्मेशन ले चुका था। जब अजलान और उसकी टीम ने इसके घर पर हमला किया तो जावेद शाह को एजेंट 10 ने पहले ही आगाह कर दिया था। इसलिए वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर दुबई चला गया और इस बात का जावेद शाह के किसी बंदे को नहीं पता था। शेर खान को उन्होंने अपनी हिरासत में लिया था। एजेंट 10 के बारे में भी शेर खान ने बेपनाह टॉर्चर सहने के बाद बताया था। अजलान सिकंदर एक बंद कोठरी में मौजूद था। इस कोठरी के दरमियान में एक कुर्सी थी जिस पर शेर खान को बैठाया गया था।
मेरा यकीन मानो जावेद शाह तुम्हारी शक्ल ही पहचानता है। उसके अलावा एजेंट ने हमें तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया। यकीन जानो वो एजेंट 61 के चेहरे के अलावा कुछ नहीं जानता। शेख खान ने थके थके लहजे में जवाब दिया। अजान सिकंदर को कोठरी से बाहर निकला तो उसे उसका सेल बजा था। उसने अननोन नंबर से कॉल रिसीव की। कहाँ हो तुम? मुझे आज फरवा से मिलना था, इजा गुस्से से बोली। अजलान सिकंदर एकदम से चौंका। तुम्हारे पास मोबाइल कहाँ से? मिस्टर अजलान सिकंदर, आपको तो अपनी बीवी की फिक्र नहीं, मगर नताशा को है, उसने लेकर दिया है। दूसरी जानिब से इजा की तंजिया आवाज आई। इस नताशा से तो मैं पूछता हूँ। अजलान ने दान भेजे थे। डियर अजलान सिकंदर, आपको गुस्सा होने के बजाय शर्मिंदा होना चाहिए, जो कि आपकी जिम्मेदारी कोई और पूरी कर रहा है। ओके, अजलान ने मुस्कुराते हुए कॉल काट दी। इजा ज्यादा नहीं तो कम अज कम उसे थोड़ी थोड़ी अच्छी लगने लगी थी, जबकि इजा भी निकाह के बाद काफी कॉन्फिडेंस हो गई थी। अब वो अजलान सिकंदर से डरती नहीं थी, या शायद अजलान सिकंदर ने कभी उसे डराना चाहा ही ना था। अजलान, उन्हें सफर शुरू किए भी 10 मिनट हुए थे जब इजा ने मासूम सी शक्ल बनाए उसे पुकारा। अजलान ने ड्राइविंग पर ध्यान देते हुए उसे जवाब दिया। वो मैं रास्ता भूल गई हूँ। अजलान सिकंदर ने आंखें सिकुड़ते हुए इसकी तरफ देखा। तो मैं क्या करूँ? मैं पिछले 1 साल से यहाँ नहीं आई। इजा ने अपनी वजाहत दी। अजलान ने सर झटकते हुए अपनी तमाम तवज्जो ड्राइविंग पर मशगूल कर दी। मजीद 15 मिनट के बाद वो एक घर के सामने खड़े थे। ओह वाह अजान, यही घर है मेरी दोस्त फरवा का, इजा शोक के लहजे में बोली। तुम्हारा घर था? इस बार अजलान ने इसकी इस्लाह की। हाँ, वही कहना चाह रही थी, इजा ने मुंह के जाविये बनाते हुए कहा और दरवाजे की घंटी बजाई। इजा, फरवा अपनी 1 साल से गुमशुदा सहेली का देखते हुए चलाई। अरे अंदर तो आओ, ये कहते इजा घर में घुस गई। ओह माय गॉड, क्या ये ख्वाब है? तुम जिंदा हो? फरवा इजा के कंधों के साथ थामते हुए बोली। हाँ यार, मैं जिंदा हूँ फरवा, इजा तकरीबन जोर से बोली थी। उससे पहले कि ये चीखने का सेशन फिर से शुरू होता, फरवा की नजर पीछे खड़े 29 साल खुश शक्ल जवान पे पड़ी। ये लड़का कौन है? कौन लड़का? वो जो खड़ा है। तुम्हारे बहनोई है, इजा ने शर्माते हुए जवाब दिया। ना कर यार, फरवा ने बेयकीनी से इसकी तरफ देखा। हाँ हाँ, इजा ने एक आंख दबाते हुए जवाब दिया। फरवा के घर से वापसी पे इजा बहुत खुश थी। पता नहीं क्यों इसका दिल हवाओं में उड़ रहा था। शायद कुछ ताल्लुकात होते ही ऐसे हैं जिनसे मिलकर हमारा सदियों पुराना गम भी खत्म हो जाता है। वो बाग में बैठी सब घास को देख रही थी। ठंडी हवा उसके बाल उड़ा रही थी। फरवा, मैं घर छोड़कर आ गई हूँ, इजा ने रोते हुए फरवा को बताया। लेकिन क्यों? फरवा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। वो लोग बहुत बुरे हैं, दिन भर मेरी तजलील करते हैं। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। इधर देखो मेरी तरफ, मेरी जान, रोने की कोई बात नहीं। तुम आज से मेरे साथ रहोगी। ओके चलो। शाबाश, रोना बंद करो वरना एक थप्पड़ लगाऊंगी, फरवा ने उसका चेहरे से बाल हटाते हुए कहा और इजा को गले लगा लिया। वो जानती थी कि इजा की माँ ने अपनी ऐश की खातिर पहले शोहर के वफात के बाद एक दौलतमंद शख्स से शादी की थी। शादी के 5 माह बाद ही उसकी माँ का इंतकाल हो गया। इजा के सुतीले बाप ने इस पर जुल्म करना चाहा था, मगर इजा अपनी इज्जत नफ्स की खातिर वहां पे ना रुकी और फरवा के घर आ गई थी। वो माजी की कुछ तलख हकीकतों के बारे में ना जाने क्यों सोच रही थी। अजलान सिकंदर ने इजा को बाग में बैठे देखा तो वो भी वहीं चला आया। वो इजा के करीब बैठ गया और उसे गौर से देखने लगा। कहाँ गुम हो मिसेस अजलान सिकंदर? अजलान ने उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहा। कहीं भी नहीं। वैसे वो तुम्हारी दोस्त बिल्कुल तुम्हारी जैसी है। पागल, उसने पागल पर जोर देते हुए कहा। वो ये सब इजा को चढ़ाने के लिए कह रहा था। इजा ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर अपना सर रख दिया। अजलान सिकंदर हैरान रह गया। अजलान सिकंदर, इजा अजलान आज चुप कैसे रह गई थी? तुम बहुत अच्छे हो अजलान, इजा ने आंखें बंद किए हुए उसे कहा था। अजलान सिकंदर ने मुस्कुराते हुए आसमान की तरफ देखा और अपने बाजू इजा के गिर्द हाइल कर दिए। इजा और अजलान एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी जिंदगी बसर कर रहे थे। इजा की जितनी भी महरूमियां थी, अजलान इन सब महरूमियों को उससे दूर कर दिया था। इज्जत, मोहब्बत, वक्त, सब कुछ तो दिया था अजलान सिकंदर ने इजा को। इंसान कितना बेसब्रा होता है, एक जरा सी चीज ना मिलने पर वबेला मचा देता है, हालांकि खुदा ने तो देने का वादा किया है। इंसान को बस सही वक्त और सही मौके का इंतजार करना होता है। इजा ने सब्र किया और इसी सब्र का सिला उसे अजलान सिकंदर की सूरत में दिया गया था, जो कि बेहतरीन सिला था। इजा रात के इस पहर जाए नमाज में बैठी खुदा का शुक्र अदा कर रही थी। ए, ए मेरे मालिक, तू कितना रहीम है, तू कितना करीम है। तूने मुझे उससे नवाजा जिसके काबिल में कभी ना थी।
भला इजा लियाकत और अजलान सिकंदर का क्या जोड़, मगर तूने इसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाली। तू इंसान के लिए क्या करता है और इंसान इन सब नेमतों को भलाए अपने नसीब खराब करने पर उतर आता है। तूने जो कुछ मुझे अदा किया वो मेरी औकात से बढ़कर है। ये मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है। वो तो हजत पढ़ के फारिग हुई तो बेड पर आकर बैठ गई। एक नजर अपने पहलू में सोते अजलान सिकंदर को देखा। मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई थी। अचानक उसके मोबाइल पे रिंग हुई। इस टाइम किसका फोन आ गया? ईजा ने सोचते हुए कॉल पे की। जी, कौन बोल रहा है? अननोन नंबर से कॉल रिसीव करते ईजा ने पूछा। स्वीट हार्ट, इतनी जल्दी भूल गई मुझे। ईजा को यकीन नहीं आया था कि क्या ये वही था, लेकिन ऐसे कैसे मुमकिन था। सॉरी, रॉन्ग नंबर। ईजा ने कांपते हाथों से कॉल काट दी। किसका फोन था? अजलान ने आंखें खोलते हुए पूछा। किसी का नहीं। ईजा की जबान लखड़ाई। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। अजलान ने गौर से इसको देखा। इज एवरीथिंग ऑल राइट? ईजा ने अपनी घबराहट पर काबू किया। यस। ईजा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए जवाब दिया और अपना रुख दूसरी तरफ करके लेट गई। अगर वो उसकी तरफ रुख करके लेटती तो यकीनन अजलान सिकंदर उसका चेहरा पढ़ लेता। अजलान उसकी पीठ को घूरता रहा। उसने अपनी तमाम सोचों को झटका दिया और टाइम देखा। फजर की अजान होने में आधा घंटा रह गया था। उसने एक बार फिर ईजा की तरफ देखा और अपना सर झटकते हुए नहाने की गर्ज से वॉशरूम चला गया। भाभी, भूख लगी है। हमाद ने लाउंज में बैठे हाँक लगाई। अरे, तुम कब आए? ईजा किचन से सारे जहान की हैरानी मुंह पे समेटे इसके पास आई। बस अभी अभी 1 मिनट पहले। हमाद ने अपनी कलाई पे फर्जी घड़ी को देखते हुए कहा। और अरसलान की तरह वो तो तुम्हारे साथ ही था ना? ईजा ने दुपट्टे से हाथ खुश करते हुए उससे पूछा। वो कह रहा था उसे कोई अर्जेंट काम है, इसलिए वो मेरे साथ नहीं आया। हमाद ने टीवी ऑन करते हुए जवाब दिया। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ईजा ये कहकर किचन की तरफ बढ़ गई। ये मंजर है इस्लामाबाद के एक क्लब का। बहुत सी लिबरल लड़कियां और लड़के इस क्लब की रंगीन रोशनियों में नाच रहे थे। दरवाजे से एक 29 साल खुश शक्ल नौजवान दाखिल हुआ। उसने व्हाइट टी शर्ट के ऊपर ब्लैक अपर पहन रखा था और काली ही जीन पहनी हुई थी। वो नौजवान चलता हुआ बार की तरफ आया। उसने एक नजर बार पे डाली और फिर एक लड़की की तरफ बढ़ गया। ओह, हाय हैंडसम। अजला ने एक नजर इस लड़की को देखा जो कि स्लीवलेस गहरे गले वाली शर्ट पहने हुई थी। इतनी लेट क्यों हो गए? पता है कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वो लड़की अपनी बाहें फैलाते हुए बोली। अजलान सिकंदर इस चीज को मुकम्मल इग्नोर करता हुआ उसके साथ वाली नशिस्त पर बैठ गया। हमाद और इजा अब खाने के टेबल पर मौजूद थे। रात के 9 बज रहे थे और अजलान सिकंदर का कुछ अता पता न था। हमाद अपने खाने से इंसाफ कर रहा था। नताशा कैसी है? इजा ने माहौल में छाए सकूत को तोड़ा। ठीक है, कल परसों चक्कर लगाएगी। हमाद ने खाने से तवज्जो हटाए बगैर जवाब दिया। इजा को अब अजलान की फिक्र हो रही थी। उसने इसकी कई मरतबा कॉल्स की थी मगर उसका फोन बंद था और अब वो एक बार फिर उसे कॉल कर रही थी मगर जवाब फिर वही था। इजा ने चिढ़ते हुए घड़ी पर निगाह दौड़ाई। हमाद ये सारी कार्रवाई देख रहा था। वैसे मिसेज अजलान, आपको अपने शौहर पे नजर रखनी चाहिए। हमाद ने खुदा तसी के तहत मशवरा दिया। क्या मतलब, क्यों? इजा ने नासमझी से सवाल किया। जितना वो शरीफ लगता है ना, इतना है नहीं। हमाद ने कांटा पलटकर घुमाते हुए कहा। क्या कह रहे हो? खुल के कहो। नहीं, मेरा मतलब हो सकता है कि वो ऐसा करना ना चाहता हो मगर ये दुनिया बहुत चालाक है। हमाद साफ साफ कहो, क्या पहेलियां बुझवा रहे हो? ईजा ने दोनों पहेलियां टेबल पे रखते हुए कहा। हो सकता है किसी लड़की का चक्कर हो। हमाद अपने दोनों हाथ पर आपस में जोड़ते हुए समझाने वाले अंदाज में कहने लगा, जबकि दूसरी तरफ इजा कुछ सोच में पड़ गई। हमाद अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए उसके चेहरे को देख रहा था। देखो लीजा, मेरा काम जल्द हो जाना चाहिए। अजान सिकंदर सामने नाचते लड़के और लड़कियों को देखते हुए बोला। देखो अजान, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ मगर। लीजा ने उसके बालों को अपने हाथ से पीछे करते हुए कहा। नहीं, मुझे अपनाना होगा तो मैं तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं कर रही। अजलान ने इस वाहियात लड़की को देखा जो अब अपनी शहादत की उंगली उसके रखसारों पे फेर रही थी। कब तक काम हो जाएगा? अजलान ने इसकी उंगली अपने रुखसार से उठाते हुए उसका हाथ अपने हाथ में कैद किया। दिल तो इसका कह रहा था कि वो लीजा को इसकी औकात बता दे मगर वो जावेद शाह का स्मगलिंग में साथ देती थी। उसे किसी भी तरह जावेद को अरेस्ट करना था और जरूरत के वक्त तो गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। बहुत जल्द मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। और तुम? लीजा अपनी नशिश से उठी और शहादत की उंगली उसकी तरफ उठाते हुए बोली। मेरा इनाम मत भूलना। वो ये कहते हुए क्लब से बाहर निकल गई।
इज़ा तो लाउंज में बैठी अजलान का इंतजार कर रही थी। रात के तकरीबन 1:30 बज रहे थे। यकायक इज़ा का फोन बजा। अननोन नंबर कॉलिंग। इज़ा ने बेध्यानी में नंबर देखते हुए कॉल पिक की। यस। इज़ा ने टीवी की तरफ देखते हुए कहा, हेलो माय डार्लिंग, हाउ आर यू? इज़ा आवाज सुनकर ठटक गई। इसका दिल अजीब तरीके से धड़क रहा था। क्या मुझे अजान को ये सब बता देना चाहिए? इज़ा ने दिमाग में आने वाली इस सोच को झटका और फौरन नंबर काट दिया। इज़ा, अजलान, तुम पागल हो गई हो। रात के 2 बज रहे थे जब अजलान घर आया। वो कमरे में जाने वाला था कि उसने किचन की लाइट जलते देखी। इज़ा किचन में खड़ी उन कॉल्स के बारे में सोच रही थी। अजलान किचन में दाखिल हुआ और इज़ा किसी गहरी सोच में थी। क्या सोच रही हो? आह, इज़ा घबरा गई। कुछ नहीं, तुम आ गए? उससे अपने नॉर्मल सांस करते हुए जवाब पूछा था। अजलान ने मुख्तसर सा जवाब दिया। कोई परेशानी है क्या? नहीं, इज़ा ने कहते हुए अपना रुख उससे मोड़ लिया। क्या छुपा रही हो मुझसे? अजलान ने इसका बाजू पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया। कुछ भी नहीं। उसकी नजरें इज़ा को कंफ्यूज कर रही थी। कहाँ थे तुम? इतनी देर से क्यों आए हो? इज़ा के दिमाग में हमाद की बातें आई तो उसने फौरन अजलान से सवाल किया। कुछ काम था। अजलान ने लंबी सांस लेते हुए कहा। कैसा काम? अजलान ने उसे अजीब सी नजरों से देखा। कोई लड़की पसंद आ गई है? इज़ा ने आंखें सकेटते हुए पूछा। तुम पागल तो नहीं होगे? मैं शादीशुदा हूँ। अजलान ने वजाहत दी। अजलान, उसने बच्चों जैसा मुंह बनाते हुए कहा। इज़ा, अजलान सिकंदर, मेरी जिंदगी में एक वाहिद लड़की तुम हो। अब अपने छोटे से दिमाग पर जोर ना डाला करो। अजलान उसके सर पर उंगली रखते हुए बोला। और मुस्तकबिल में कि तुम कैसे सवाल कर रही हो आज? अजलान ने परेशानी से कहा। अजलान, मेरी तुम्हारी जिंदगी में क्या अहमियत है मुझे जानना है, बताओ प्लीज। इज़ा जिद करते हुए बोली। ऐसा नहीं था कि वो इनसिक्योर थी। अजलान सिकंदर लाखों मरतबा अपने रवैये और अमाल से अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत इज़ा को बावर करवा चुका था, मगर अब वो लफ्जी इजहार भी चाहती थी। तो मिसेज अजलान सिकंदर चाहती है कि अजलान सिकंदर अपनी मोहब्बत का इतराफ करे। अजलान ने उसे शौक नजर से देखते हुए कहा। उसे लगा कि इज़ा पर फजल हो जाएगी, मगर वो भी इज़ा थी, अजलान सिकंदर की बीवी। हाँ बिल्कुल सही समझे तुम। इज़ा उसके गालों पर चुटकी काटते हुए बोली। मैंने सुना था कि मुशरिक की लड़कियां शर्माती हैं, मगर अब शायद ये रवायत खत्म हो गई है। उसे उसने इज़ा पर चोट की थी। तुम इजहार मोहब्बत तो करो, फिर मैं शर्मा भी लूंगी। इज़ा ने अपना निचला होंठ दांतों की तरफ दबाते हुए कहा। मुझे लगा था मेरी बीवी एक शरीफ खातून है। अजलान ने पुरशिकवा लहजे में कहा। तब क्या आपको वाकई ऐसा लगा था? इज़ा ने अपने बाजू उसके गर्दन के गिर्द बांधते हुए कहा। ला हौला वला कुव्वता। अजलान उसके बाजू हटाते हुए किचन से निकल गया और तेजी से कमरे की तरफ भाग गया और पीछे इज़ा ने जोरदार कहका लगाया था। ये लो, इसमें तमाम तर इंफॉर्मेशन मौजूद है। लीजा ने एक यूएसबी अजलान की तरफ बढ़ाई थी। गुड। अजलान ने तशक्कुर भरी निगाहों से उसे देखा। मे बी आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग अदर देन गुड। लीजा ने उसके करीब सरकते हुए कहा। अजलान इसके करीब आने की वजह से संभल के बैठ गया। तो हम शादी कब कर रहे हैं? लीजा मुतजस्सिस हुई, जबकि अजलान सिकंदर की आंखों में सख्ती उतरी थी, जिसे वो बड़ी मुहारत से छुपा गया। मैंने इस बारे में भी कुछ सोचा नहीं। अजलान ने जान छुड़ाई थी। तो अब अगली डील जवेद शाह कब और किधर करेगा? अजलान ने टॉपिक बदलते हुए काम की बात की थी। तुम्हारी शादी की उम्र निकली जा रही है अजलान। लीजा ने फिक्रमंद होने की एक्टिंग की। अगली डील जवेद शाह कब और किधर करेगा लीजा? अजलान ने एक एक लफ्ज सख्ती पे देते हुए कहा था। ये बात जानने के लिए तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा, बिल्कुल वैसे जैसे तुम मुझे करवा रहे हो। अजलान ने अपना गुस्सा जब्त करते हुए अपनी मुठ्ठियां सख्ती से बंद कर ली थी। अजलान सिकंदर को एक कुर्सी से बांध दिया गया था। चारों तरफ अंधेरा था। अजलान के सर बिल्कुल ऊपर एक बल्ब लगाया गया, जिसकी रोशनी महदूद थी, और अजलान के बिल्कुल सामने वो खड़ा था और उसके हाथ में एक पिस्तौल थी। अजलान सिकंदर खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर कोशिश बेसुध थी। इस शख्स ने अजलान के सर का निशाना ताना और था। आह! इज़ा एक झटके से उठ बैठी। उसके कमरे में जीरो के बल्ब की रोशनी हल्की हल्की रोशन थी। शुक्र है ये ख्वाब था। इज़ा मुकम्मल तौर पर पसीने में शराबोर थी। वो उठकर बालकोनी में आई और अजान को वहां ना पाकर उसने अपने कदम वॉशरूम की तरफ बढ़ाए। अजान, क्या तुम अंदर हो? जब उसे किसी तरह की आवाज ना आई तो उसने वॉशरूम का दरवाजा खोला, जो कि लॉक ना था। परेशानी के आलम में वो कमरे से निकलकर बाहर लॉन्च में आई तो वहां भी कोई ना था। या अल्लाह!
ईजा के दिल की धड़कन तेज हुई थी। वो वापस पलटी ही थी जब उसे स्टडी रूम से रोशनी नजर आई। उसने स्टडी रूम में कदम रखा तो अजलान सिकंदर सोफे पर बैठा लैपटॉप चला रहा था। ईजा ने उसे देखकर लंबी सांस ली और दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। अजलान सिकंदर ने चेहरा उठा के ऊपर देखा। ईजा को देखकर उसे सोफे पर कुशन साइड पर किया और अपना बाजू सोफे की पुष्ट पर फैलाया। ये एक तरह का इशारा था। ईजा ने उसकी कार्रवाई देखते हुए घड़ी पर निगाह दौड़ाई तो घड़ी 2:30 बजा रही थी। वो आहिस्ता से चलती हुई अजलान सिकंदर के पहलू में बैठ गई। कुछ देर वो लैपटॉप की स्क्रीन को देखती रही। जब उसके पल्ले कुछ ना पड़ा तो उसने अपना सर अजलान के कंधे पर टिका दिया। अजलान ने अपना चेहरा इसकी तरफ करते हुए उसकी पेशानी पर बूसा दिया और दोबारा से अपने काम में मसरूफ हो गया। ईजा लैपटॉप की बोर्ड पे तेजी से चलती अजलान सिकंदर की उंगलियों को देखने लगी। कुछ देर बाद ईजा अजलान नींद की वादी में उतर गई थी। नताशा आज काफी दिनों के बाद ईजा से मिलने उसके घर आई थी। अरे वाह, बड़ी जल्दी चक्कर नहीं लगा लिया तुमने, ईजा उससे गले मिलते हुए बोली। पता है हमाद मुझे कहीं जाने ही नहीं देता, नताशा ने शिकवा किया था। ओह माँ सत्य, ईजा ने अपने होंठ बाहर को निकालते हुए बोली। नताशा, नाश्ता बनाऊं, ईजा ने उससे पूछा। नहीं, मैं तो कहती हूँ कि तुम भी ना करो, आज दोनों सहेलियां बाहर नाश्ता करते हैं। ओह ग्रेट आइडिया, ईजा ने उसे दाद दी थी। अच्छा तुम जरा सब्र करो, मैं थोड़ा सा मेकअप करके आती हूँ, ये कहते हुए ईजा अपने कमरे की तरफ भागी। ये लड़की पागल है, पुअर अजलान सिकंदर, नताशा ने तासुब से सर हिलाया। नताशा, ईजा की चीख नमा आवाज सुनकर नताशा उसके कमरे की तरफ भागी। क्या हुआ ईजा? नताशा ईजा को बेड पे गिरे देखकर खुली हुई सांस से बोली। नताशा, मुझे चक्कर आ गया। और अभी ईजा ने अपनी बात मुकम्मल ही नहीं की थी जब वो अपने मुंह पे हाथ रखे वॉशरूम की तरफ भागी। नताशा को लगा कि शायद वाकई ईजा पागल हो गई है। जब नताशा वॉशरूम में दाखिल हुई तो ईजा स्नैक के ऊपर झुकी हुई सिंक के ऊपर झुकी हुई थी। आई एम नॉट फीलिंग वेल नताशा, ईजा की हालत खराब हो रही थी। अजलान सिकंदर के फोन पर लीजा कॉलिंग लिखा आ रहा था और अजलान ने बेजल्दी से फोन उठाया। यस, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि हम आज दोपहर को मिल रहे हैं। लिसन लीजा, आई एम बिजी राइट। अभी अजलान ने बात मुकम्मल ना की थी कि लीजा बोल उठी। जवेद शाह अपनी अगली डील कब और कहाँ करेगा ये भी आज लंच पर बताऊंगी। ओके, अजलान सिकंदर की आंखों में चमक उभरी थी। कांग्रेचुलेशंस, यू आर एक्सपेक्टिंग, लेडी डॉक्टर ने ईजा को मुबारकबाद दी। ओह माय गॉड, रियली? नताशा ने अपना बड़ा सा मुंह खोलते हुए हैरानी जाहिर की, जबकि ईजा ने बेयकीनी की कैफियत में डॉक्टर का मुंह देखा। ईजा की तबीयत ज्यादा खराब होता देखकर नताशा उसे डॉक्टर के पास ले आई थी। मैं अजलान भाई को ये खबर सुनाती हूँ, नताशा मोबाइल निकालते हुए बोली। बिल्कुल नहीं, मैं खुद बाद में बता दूंगी, ईजा नताशा के हाथ से मोबाइल खींचते हुए बोली। ओके, लेट्स पार्टी, नताशा ने हाथ में लहराते हुए कहा। लेकिन बिल तुम पे करोगी, मैं अपना वॉलेट घर भूल आई हूँ, ईजा ने मुंह बनाते हुए बोली। नो प्रॉब्लम ईजा बेबी। फिर वो दोनों होटल की तरफ रवाना हो गए। अब ईजा और नताशा होटल में मौजूद थे। ईजा ने ऑर्डर दे दिया था और अब वो ऑर्डर का इंतजार कर रही थी, जबकि नताशा मैसेजेस करने में मसरूफ थी। ईजा टेबल पर उंगलियां बजा रही थी और नताशा दो घड़ी चेहरा उठाकर ईजा को देखती। ईजा इंतजार करके थक गई थी। उसने लंबी सांस लेकर अपनी नजर नताशा की कुर्सी के पीछे वाले टेबल पर डाली तो उसकी आंखें पलटने से इनकारी हो गई। अजलान सिकंदर किसी लड़की के साथ बैठा मुस्कुरा रहा था। ईजा को लगा शायद उसे देखने में धोखा हुआ है। उसने अपनी आंखें बंद करके दोबारा खोली, मगर वो अजान का चेहरा ही था। ईजा को लगा किसी ने उसका दिल मुट्ठी में भींजा हो। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। हाँ तो बताओ, अजलान सिकंदर लीजा की तरफ मुतवज्जो हुआ। तुम मुझसे शादी कब करोगे? लीजा ने अपना सारा ध्यान अजलान की तरफ करते हुए सवाल दागा। तब जब तुम मुझे मेरे सवाल का जवाब दोगी। लीजा ने एक नजर इस खुदगर्ज इंसान की तरफ देखा। वो जानती थी कि अजान इससे मोहब्बत नहीं करता, मगर इसका दिल अजान को चाहता था। वो इसे किसी भी तरह पाना चाहती थी। कल रात 3 बजे लीजा ने अभी बात मुकम्मल नहीं की थी कि एक लड़की इनके टेबल पर आ खड़ी हुई। ओह, तो तुम इस नौयत के भी काम करते हो? लीजा का लहजा सपाट था, जबकि उसके चेहरा गुस्से की वजह से सुर्ख हो गया था। कौन है ये लड़की? लीजा ने नफरत भरी निगाहों से लीजा को देखा, जो कि हैरान सा चेहरा लिए अपने सामने खड़ी लड़की को देख रही थी। अजलान सिकंदर को अपना प्लान फेल होता हुआ नजर आया। लीजा उसकी 2 महीने की मेहनत 2 मिनट में जाया करने पर तुली हुई थी। अजलान सिकंदर ने जब्त करते हुए अपने जबड़े सख्त किए।
बताओ मुझे कब ये तमाशा जारी है तुम्हारा? इजा चीखी थी। होटल में बैठे तमाम लोग अब उनकी तरफ मुतवज्जो हो चुके थे, जबकि नताशा आंखें फाड़े बेयकीनी से अजलान को देख रही थी। क्या अजलान ऐसा कर सकता है? वो अब तक यकीन ना कर पाई थी। मुझे छोड़ो, तुम बताओ तुम कौन हो, इतना ड्रामा क्यों कर रही हो? लीजा ने उसे अजीब सी निगाहों से देखा, जबकि अजलान अपना प्लान को फेल होता चुपचाप देख रहा था। मैं कौन हूँ? ये जो जनाब तुम्हारे सामने बैठे हैं ना, मैं उसकी बीवी हूँ, समझी तुम? इजा ने उसे बावर करवाया। अजलान की बीवी? हाँ, मैं अजलान की बीवी हूँ। मैं इजा अजलान सिकंदर हूँ। लीजा को तो जैसे झटका लगा। वो बेयकीनी से अजलान को देखने लगी, जिसके चेहरे पर दुनिया भर की सख्ती दर आई थी। शर्म नहीं आई तुम्हें? इतना घटिया तुम कैसे हो सकते हो अजलान? बस बहुत हुआ, शट द हेल अप। अजलान गुस्से से दहाड़ा। इजा उसको इतने गुस्से में देखकर सहम गई थी, जबकि बाकी लोग चहमुगैया करने लगे। चलो यहाँ से। अजलान इजा का हाथ सख्ती से पकड़ते हुए बाहर की तरफ कदम बढ़ाने लगा। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। इजा ने अपने आंसुओं को काबू करने की नाकाम कोशिश की। वो अजलान सिकंदर के हाथों से अपना हाथ छुड़वाने लगी, मगर अजलान की गिरफ्त मजबूत थी। वो उसे घसीटता हुआ कार के करीब ले गया। उसे अपने दांत पीसते हुए कार का दरवाजा खोला और इजा को कॉल के अंदर धक्का दे दिया और खुद ड्राइविंग सीट संभाली और कार स्टार्ट कर दी, जबकि नताशा हमाद को कॉल करने लगी। लिजा इस कार को और अजलान को दूर जाता देख रही थी। अजलान तेजी से कार चला रहा था। लिजा उसके चेहरे से उसके गुस्से का पता लगा सकती थी, मगर उसकी परवाह नहीं थी। परवाह थी तो अपनी मोहब्बत की, परवाह थी तो उस बच्चे की जिसका बाप इसकी माँ से बेवफाई कर रहा था। अजान, क्यों किया तुमने ऐसा? ईजा ने रूहानसी होते हुए बोली थी। तुम्हें पता है कि मैं... विल यू प्लीज शट अप? ईजा ने अपनी बात पूरी नहीं की थी कि अजान सिकंदर उसे खूंखार नजरों से देखता हुआ दहाड़ा। ईजा अपनी जगह साकित रह गई। क्या ये वाकई अजान सिकंदर था? वो अजान सिकंदर जिससे उसने बेपनाह मोहब्बत की थी? वो अजान सिकंदर जो इसे इतनी इज्जत देता आया था, जिसने उसे इतना चाहा था? मगर यहाँ तो उसका अजलान सिकंदर नहीं था। उसके साथ बैठा शख्स इजा लियाकत का अजलान सिकंदर नहीं हो सकता था। ये तुमने अच्छा नहीं किया अजलान सिकंदर। लीजा को रह रहकर अजलान पे गुस्सा आ रहा था। मैंने तुमसे मोहब्बत की और तुमने क्या किया? तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी मोहब्बत की तजलील की। तुमने लीजा हयात की तस्दीक की। लीजा अजलान की तस्वीर को थामते हुए बोली थी। तुम शादीशुदा थे, तुम्हारी बीवी थी और तुमने ये सब कुछ मुझसे छुपाया। तुम मेरे साथ मेरी मोहब्बत के साथ खिलवाड़ करते रहे। लीजा वाकई अजलान सिकंदर से मोहब्बत करने लगी थी। इसके दिल में नूर मोहब्बत उतर चुका था और वो इतना बड़ा धोखा बर्दाश्त ना कर सकी। मगर तुम फिक्र ना करो, बहुत जल्द तुम अपनी तबाही देखोगे। तुम्हें तुम्हारी बेवफाई की सजा जरूर मिलेगी। लीजा ने उसकी तस्वीर को न जाने कितने टुकड़ों में फाड़ते हुए एक फैसला लिया था। तुम मुझे डरा धमका के चुप नहीं करवा सकते। अजलान सिकंदर, तुम्हें जवाब देना होगा। इजा अजलान की आंखों में आंखें डाले बोली थी। तुम अजलान ने उसकी तरफ उंगली उठाई। तुम बिल्कुल चुप हो जाओ, तुम्हारी वजह से मेरा प्लान फेल हो गया। अजलान गुस्से से दांत दबाते हुए बोला। ओह, तो तुम्हारा प्लान फेल हो गया? शादी रचाना चाहते थे उसके साथ, इसे तुम्हें गुस्सा आ रहा है कि उसके साथ शादी का प्लान तुम्हारा फेल हो गया? कर लो उसे शादी। मुझे वैसे भी तुम जैसे 2 टके के दिल फेंक मर्द के साथ नहीं रहना, लेकिन इससे पहले एक और अधूरा काम पूरा करो। ईजा तकरीबन चीखते हुए बोली। अजलान सिकंदर, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। ईजा ने उसके सामने खड़े होते हुए इसके सर पे बम फोड़ा था। अजलान सिकंदर का तो जैसे गुस्सा आपे से बाहर हुआ। चटाख! ईजा खुद पे अजलान के हाथ उठाने पर भौंचकी रह गई। ये आवाज अजलान के थप्पड़ की नहीं, बल्कि ईजा का दिल टूटने की थी। उसने तो कभी ख्याल में भी तवक्को न की थी कि अजलान सिकंदर इस पर ईजा लियाकत पर हाथ उठाएगा। अजलान उसे गुस्से से देखता हुआ कमरे से बाहर निकल गया, जबकि ईजा सुन खड़ी रह गई। अजलान इस पे हाथ नहीं उठाना चाहता था, मगर वो बहुत ज्यादा गुस्से में था। लीजा को वो किस हद तक अपनी जाती मालूमात दे चुका था। वो जानता था कि लीजा इससे वाकई मोहब्बत करती है, इसलिए उसने अपनी इंफॉर्मेशन उसे दी थी। अपनी इंफॉर्मेशन पूरा होने के बाद वो लीजा को हिरासत में ले लेता। उसने ऐसा ही तो प्लान किया था, मगर ईजा ने उसके सारे प्लान पर पानी फेर दिया। एक तो उसे प्लान के नाकाम होने का गुस्सा, जबकि जल्दी पे तेल का काम ईजा के तलाक के मुतालबे का था। लीजा इस वक्त जावेद शाह के पास मौजूद थी। वो अजलान सिकंदर को इसकी बेवफाई की सजा देना चाहती थी। बॉस, क्या आप मुझे एजेंट 61 की तस्वीर दिखा सकते हैं?
لیزا جانتی تھی کہ ازلان ایک سیکرٹ ایجنٹ ہے، وہ پھر بھی اپنے باس کی انفارمیشن اسے دیتی رہی کیونکہ وہ اس سے بے انتہا محبت کرنے لگی تھی، مگر ازلان نے اس کی محبت کے ساتھ کھیلا تھا جسے لیزا چاہ کے بھی بھلا نہ سکی۔ جاوید نے اس کے سامنے ازلان کی تصویر رکھ دی۔ لیزا کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں اسے جانتی ہوں، لیزا ٹانگ پہ ٹانگ جمائے بولی تھی۔ ازلان بھائی واقعی بہت شرمندہ ہے۔ نتاشا نے حماد کو سارا قصہ سنایا تھا۔ حماد جانتا تھا کہ ازلان لیزا اسے کیا چاہتا تھا، لیکن اسے نتاشا کو یہ سب ایزا کو بتانے سے سختی سے منع کیا تھا۔ آج صبح ہی وہ اور حماد ازلان کے گھر آئے تھے تاکہ ان دونوں کی صلح کرائی جا سکے۔ نتاشا ازلان کے حوالے سے ایزا کی بدگمانی دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے شرمندہ ہونے سے بھی اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایزا نے کل رات ہونے والا واقعہ یاد کرتے ہوئے صد مہری سے کہا۔ دیکھو ایزا، ہو سکتا ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو وہ غلط ہو سکتا ہے بھائی کام کے سلسلے میں اس سے بات کر رہے ہوں۔ نتاشا نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اسے حقیقت سے آگاہ کرنا چاہا۔ اگر بات اس لڑکی کے چکر تک ہوتی تو شاید میں معاف کر دیتی۔ ایزا آنسوں سے بھری آنکھیں اس پر گاڑتے ہوئے بولی، مگر نتاشا نے سوال داغا تھا۔ کچھ بھی نہیں۔ ازلان سکندر اس کا لباس تھا اور وہ ازلان سکندر کا لباس تھی۔ وہ ازلان سکندر کو کسی بھی صورت میں بے لباس نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے ازلان کے ہاتھ اٹھانے پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اچھا چلو کہیں باہر چلتے ہیں، رو رو کے اپنی طبیعت مت خراب کرو، ویسے بھی مجھے پھپھو بننے کا بہت شوق ہے۔ ایزا کو اس ماحول میں گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ ہو سکتا ہے ماحول کی تبدیلی سے بہتر محسوس کروں۔ یہ سوچتے ہوئے ایزا نتاشا کی بات پر مان گئی اور جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ اچھا اب تو پریشان مت ہو، ایک ہی پلان فیل ہوا ہے نا، حماد نے اسے تسلی دی۔ مجھے پلان فیل ہونے کی ٹینشن نہیں، میں صرف اس بات کی فکر کر رہا ہوں کہ کہیں لیزا میری انفارمیشن جاوید کو نہ دے دے۔ ازلان نے تشویش ظاہر کی۔ ارے نہیں، وہ ایسا کیوں کرے گی، وہ تو تم سے محبت کرتی ہے، اور ویسے بھی جس سے محبت کی جائے انہیں برباد نہیں کیا جاتا۔ ازلان نے اس کے آخری جملے پر چونک کر اسے دیکھا۔ کیا میں نے یہ نتاشا کی کتاب میں پڑھا تھا؟ ازلان کی یوں دیکھنے کی پر حماد نے صفائی دی۔ اچانک باہر سے گولیوں کے چلنے کی آواز آئی، وہ دونوں چونک گئے تھے۔ ازلان تم ہتھیار لے کر آؤ، میں پتہ کرتا ہوں کہ ماجرا کیا ہے۔ حماد اٹھتا ہوا بولا۔ نہیں تم میرے ساتھ آؤ۔ ازلان نے اپنی سکس سینس کے اشارے کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے روکا اور وہ دونوں تیزی سے بھاگتے ہوئے تہہ خانے کی طرف لپکے تھے۔ ایجنٹس تم لوگ جلد از جلد اس گھر پر پہنچو۔ حماد نے اپنی ٹیم کو ازلان کے گھر کا ایڈریس دیتے ہوئے کال کاٹ دی۔ کون لوگ ہیں یہ؟ ازلان نے خود سے ہی سوال کیا۔ ازلان ہمیں چیف کو بتانا ہوگا، حماد نے اسلحہ لیتے ہوئے اسے کہا۔ ازلان نے چیف کو کال کی مگر چیف فون ہی اٹھا رہے تھے۔ کچھ تو گڑبڑ ہے، ازلان نے حماد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آفٹر 8 minutes سر، ایجنٹ 32 اور ایجنٹ 15 مارے گئے ہیں۔ دوسری طرف سے ازلان سکندر کو آگاہ کیا گیا۔ کیا؟ ازلان نے بے یقینی سے کہا۔ وہ جو کوئی بھی تھا ازلان کے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا۔ اور چیف انہیں آگاہ کرو، وہ میرا فون نہیں اٹھا رہے۔ اب کی بار حماد نے انہیں حکم صادر کیا۔ سر وہ ازلان سکندر دھڑا۔ وہ چیف کو کسی نے مار دیا ہے، وہ اب نہیں رہے۔ ازلان کے سر پہ تو کسی نے ہتھوڑا مارا تھا۔ اس کی ہمت ڈھہ گئی۔ میں باہر جا رہا ہوں، ازلان طیش میں بولتا ہوا باہر جانے لگا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ حماد نے اس کے شانوں سے پکڑ کر اسے روکا۔ کیا نہیں؟ وہ جو کوئی بھی ہے میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ باہر ہمیں ناکام کیا جا رہا ہے۔ ازلان آپے سے باہر ہوا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب ازلان اس قدر فکر مند اور پریشان ہوا تھا۔ باہر تم نہیں، میں جاؤں گا۔ کیا؟ نیور۔ ازلان وہ جو کوئی بھی ہے اسے تمہاری تلاش ہے اور ہمارے لیے تمہاری حفاظت بہت ضروری ہے۔ ازلان کا گال تھپتھپا پاتے ہوئے حماد باہر چلا گیا اور ازلان اسے خالی آنکھوں سے باہر جاتا دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے میں اوور ریئیکٹ کر گئی، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی تھی، ہو سکتا ہے وہ کام کے سلسلے میں اس کے ساتھ ہو۔ ایزا کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا اور اس سب میں بھی اسے اپنا ہی قصور نظر آیا۔ اوہ شکر ہے تمہارے دماغ میں بھی کوئی بات پلے پڑی۔ نتاشا نے سکھ کا سانس لیا۔ میں آج گھر جا کر اسے معافی مانگوں گی۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ مجھے معاف کر دے گا؟ ایزا نے کنفیوز سا بولا تھا۔ آف کورس، کیوں نہیں کرے گا، ضرور کرے گا، اور ویسے بھی اسے تم نے ایک خوشخبری بھی تو سنانی ہے۔ ایزا اس کا جواب سن کر مسکرائی تھی۔ ازلان بیسمنٹ کے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ بے چینی تھی کہ شدت اختیار کر رہی تھی، سکون تھا کہ دل کو میسر نہ تھا۔ اس کا دل گھبرا رہا تھا، کچھ تو غلط تھا جو اس سے سرزد ہوا تھا۔ سر، جاوید شاہ نے ہم پر اٹیک کیا ہے، دوسری سمت سے مائکرو فون پر آواز آئی۔ ازلان کی رگیں تن گئیں۔ مجھے باہر کی اپڈیٹ دیتے رہنا۔ حماد باہر نکلا تو باہر کی صورتحال دیکھ کر دھنگ رہ گیا۔
جاوید شاہ کے 25 بندوں میں سے 13 لوگ مر چکے تھے، جبکہ ان کی ٹیم کے صرف 2 ہی افراد اب تک زندہ تھے۔ تو کیا ہم ہار گئے؟ حماد کی دھڑکن کم ہوئی تھی۔ حماد صوفے کے پیچھے چھپا تھا۔ اس نے جاوید شاہ کے بندوں میں سے مزید 5 لوگوں کو مار گرایا تھا۔ سر، ایجنٹ 21 مارا گیا۔ اذان کا دل کسی نے مٹھی میں بھینجا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ کیسے ہار سکتا تھا؟ اذان سکندر، جس کا کام اس کی پہچان تھا، اپنے پیشے میں اس نے کبھی مات نہیں کھائی تھی، تو یہ بازی وہ کیسے ہار سکتا تھا؟ ناممکن۔ وہ یہاں بزدلوں کی طرح چھپ نہیں سکتا تھا، اور وہ اذان سکندر تھا۔ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال کر اس کا کلیجہ نکال لینے کی مہارت رکھتا تھا۔ اذان سکندر کے ارادہ کر کے باہر نکلا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آیا۔ اس کے ہاتھ میں جدید قسم کی گن تھی۔ اس نے آتے ہی ایک بم زمین پر پھینکا اور ہر طرف دھواں دھواں ہو گیا۔ ابھی دشمن سنبھلا نہیں تھا کہ اذان نے فائرنگ شروع کر دی، اور 40 سیکنڈ میں 5 آدمی مارے گئے۔ اب صرف ایجنٹ 32، حماد اور اذان زندہ تھے۔ اچانک اذان کے پیچھے سے کسی نے گولی چلائی۔ اذان نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایجنٹ 32 اس کی طرف پشت کیے لڑکھڑایا۔ اس نے اذان کو بچانے کے لیے خود کو قربان کر دیا تھا۔ دوسری طرف سے حماد نے ان 2 لوگوں پر گولی چلائی۔ اذان نے کھوئی ہوئی حالت میں ایجنٹ 32 کے مردہ وجود کو دیکھا۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اذان سکندر اپنی ٹیم کو بچا نہ سکا تھا۔ جاوید شاہ کے سارے بندے مر چکے تھے۔ اذان گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور اپنے بل دونوں مٹھیوں میں بھیج دیے۔ حماد نے اذان کو دیکھا اور اسے اس پر ترس آیا۔ وہ اس کی طرف لپکا۔ ٹھا! ایک دم گولی چلنے کی آواز آئی۔ اذان نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حماد زمین پر گرا ہوا تھا۔ اس کے سینے سے خون بہہ رہا تھا۔ اذان کو اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئی۔ جاوید شاہ اس کے قریب آ رہا تھا، مگر اذان اسے دیکھ ہی کب رہا تھا۔ اس کی آنکھیں تو حماد کے لاش پہ ٹھہر چکی تھی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ تو کیا اس کی بازی ناکام کی گئی تھی؟ کیا اس نے حماد کو کھو دیا تھا؟ کیا اذان سکندر ٹوٹ گیا تھا؟ اذان بے اختیار سانس لیا۔ جاوید شاہ اس کے قریب آ کے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ بیچارہ اذان سکندر! کیا ہوا؟ وہ اذان سکندر کے بال مٹھیوں میں بھیجتے ہوئے اس کا سر اوپر کرتے ہوئے بولا۔ مات برداشت نہیں ہوئی کیا تم سے؟ اذان سکندر نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ اذان کو تو ہوش ہی نہیں تھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ دیکھو اسے، اس لاش کو دیکھو، یہ تمہاری شکست کی گواہی ہے۔ میں نے حماد کیانی کو مار دیا۔ اس کا قاتل تمہارے سامنے ہے، اور تم اذان سکندر کچھ بھی نہیں کر پائے۔ اذان سکندر بے بس ہے۔ اذان کو طیش آیا تھا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، سیسا تھا جو جاوید اس کے کانوں میں ڈال رہا تھا۔ اذان نے اپنی مٹھیاں بھینجی۔ ہا ہا ہا! ترس نہیں آ رہا تمہیں خود پر؟ تمہاری ٹیم ختم ہو چکی ہے۔ تمہارا دوست کتے کی موت۔ جاوید نے اپنا جملہ بھی پورا مکمل نہ کیا تھا جب اذان سکندر اپنی پوری قوت سے اس کے منہ پہ ایک مکہ دے مارا۔ مکہ اتنا شدید تھا کہ جاوید شاہ پیچھے کو گرا اور اس کی بندوق دور جا گری۔ اذان سکندر اس کے جانب بڑھا اور دیوانہ وار اس پہ مکے برسانا شروع کر دیے۔ وہ تب تک اسے مارتا رہا جب تک اس کے سر سے خون نہیں نکل آیا تھا۔ تم کہہ رہے تھے کہ مجھے مات ہوئی۔ ہاں ہوئی ہے مجھے مات، مگر اب ایک بات دماغ میں ڈالو، میں ہارا ہوا ہوں تو مات تمہیں بھی ہوگی، بازی تمہاری بھی ناکام ہوگی، شکست تمہیں بھی ہوگی۔ اذان وحشی سا ہو گیا۔ وہ پیچھے کو پلٹا اور حماد کے ہاتھ میں سے گن لے کر اس کی طرف پلٹا۔ احسان کے بدلے احسان، نیکی کے بدلے نیکی، اور موت کے بدلے موت۔ اذان سکندر نے اس پر پستول تانی۔ مات مبارک ہو جاوید شاہ، اور یہ کہہ کر اس نے گولی جاوید کے آر پار کر دی۔ ایزا اور نتاشا 4 بجے کے قریب گھر پہنچے۔ گھر کی حالت دیکھ کر ایزا کو دھچکا لگا۔ اذان! بے اختیار اس کے منہ سے نکلا اور وہ بھاگتی ہوئی اندر گئی۔ نتاشا بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ اندر جا کر دیکھا تو بہت ساری لاشیں پڑی تھیں۔ ایزا کی دھڑکن مس ہوئی۔ ایزا، اذان ٹھیک ہے؟ نتاشا نے سامنے کافی ٹیبل پر بیٹھے اذان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ایزا اذان کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف بھاگی اور اس کے گلے لگ گئی۔ اچانک نتاشا بے ہوش ہو کے نیچے گری تھی۔ ایزا نتاشا کی طرف بڑھی۔ جب اس نے حماد کی ڈیڈ باڈی کو دیکھا تو وہ بے اختیار اس کے منہ سے بھی چیخ نکلی تھی۔ رات کو ایزا کے کمرے میں آئی تو اذان بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے زمین پر بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ بے رونق ہو گیا تھا۔ ایزا کو وہ بہت کمزور لگ رہا تھا۔ اسے اذان کو دیکھ کر رونا آیا، مگر اس نے اپنے آنسو ضبط کیے اور اذان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ اذان، ایسا مت کرو، حماد کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ ایزا اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی۔ اذان، نتاشا واپس چلی گئی ہے، اب تمہیں بھی نارمل ہونا ہوگا۔ ایزا نے اس کے کندھے پر سر رکھا۔ کافی دیر تک کمرے میں سناٹا رہا۔ اس سب کی ذمہ دار تم ہو۔ اذان کی آواز نے کمرے کی تاری میں سکوت توڑا تھا۔ کیا؟ ایزا نے سر اٹھا کر اذان کی طرف دیکھا۔
تم پاگل تو نہیں ہوگے؟ ایزا نے بے یقینی سے اس کے چہرے کو دیکھا جو کسی بھی طرح کے جذبات سے آ رہی تھا۔ اذان اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ایزا بھی اٹھ کے اس کے مقابل آئی تھی۔ تم ہو اس کی موت کی وجہ، اذان اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ ایزا کے آنسو بہہ نکلے۔ اس کی عزت کا رکھوالا آج اسے بے آبرو کرنے پر تلا تھا۔ اگر اس وقت تم نہ آئی ہوتی تو لیزا کبھی ایسا نہ کرتی۔ تم نے کی اس سب کی شروعات۔ اذان بے حد ٹوٹ چکا تھا۔ نہیں اذان سنگدر، میں نے نہیں کیا تھا یہ سب شروع۔ تم مجھ پہ الزام لگا رہے ہو، بس کر دو۔ ایزا بے بسی سے اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ چلی جاؤ یہاں سے، اذان نے صد مہری سے کہا۔ ایزا کے دل پہ ہتھوڑے چلے تھے۔ تم پاگل ہو گئے ہو اذان، تم ہوش میں تو ہو؟ ایزا حلق کے بل چلائی تھی۔ تم مجھے ان سب کا ذمہ دار قرار نہیں دے سکتے۔ ایزا نے ابھی بات مکمل نہیں کی تھی۔ شش، بالکل چپ، اذان اس کے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے بولا۔ فیصلے کے بعد مجرم بولا نہیں کرتے بلکہ سرنڈر کرتے ہیں۔ ایزا کو وہ بولتا ہوا دیوانہ لگا تھا۔ گیٹ آؤٹ آف ہیئر، اذان اس کے راستے سے ہٹتا ہوا بولا۔ اذان، گیٹ آؤٹ آف مائی روم، مائی ہوم اینڈ مائی لائف۔ اذان نے آخری جملے پر زور دیا تھا۔ آؤٹ، اذان باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چیخا۔ نو، آئی ایم ناٹ گوئنگ اینی ویئر، ڈو یو لسن دیٹ؟ آئی ایم ناٹ لیونگ یو، ناٹ ناؤ، ناٹ ایور۔ ایزا نے روتے ہوئے بولا تھا۔ اذان نے گہری سانس لی۔ اوکے دین۔ اذان نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور آگے بڑھ کر ایزا کی کلائی تھامی اور باہر کی طرف رخ کر دیا۔ چھوڑ دو مجھے اذان، مجھے چھوڑ دو۔ ایزا سسک گئی، لیکن اذان اسے مسلسل گھسیٹتا ہوا باہر مین گیٹ پہ لے آیا۔ گڈ بائی ایزا لیاقت، اذان یہ کہہ کر اسے باہر دھکا دیا اور گیٹ بند کر دیا۔ اس نے اپنے قدم اندر کی طرف بڑھا دیے۔ اذان دروازہ کھولو، اذان پلیز، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ اذان پلیز، خدا کا واسطہ ہے دروازہ کھولو پلیز اذان۔ ایزا دیوانہ وار گیٹ کھٹکھٹاتے ہوئے بولی۔ اذان، تم باپ بننے والے ہو اذان، مجھے اکیلا مت چھوڑو اذان، ایسا مت کرو اذان پلیز۔ اذان، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں اذان، اذان۔ ایزا نے اسے فریاد کی، مگر دروازے کے اس پار کوئی ہوتا تو اس کی سسکیاں سنتا نہ جانے کتنی ہی دیر وہ دروازے کے باہر بیٹھی روتی رہی، آہوزاری کرتی رہی، فریاد کرتی رہی، سسکیاں لیتی رہی، واسطے دیتی رہی، منتیں کرتی رہی، چیختی چلاتی رہی، مگر وہاں اس کے تڑپ دیکھنے والا کوئی نہ تھا۔ اس کے ہاتھ دروازہ کھٹکھٹا کے دکھنے لگے، اس کے آنسو اب تھم گئے تھے، اس کی آنکھیں رو رو کے سوج گئی تھی، دل کہیں سنسان کونے میں بیٹھا سسک رہا تھا۔ ایزا تھک چکی تھی اور تھکنے سے زیادہ وہ ٹوٹ چکی تھی۔